So, hello and welcome back to the channel, everyone. So, today we are doing the fourth paper marathon, and in this marathon series, if you have not started with this, if you have not joined this, and you're preparing for LUPGET English exam, then guys, you're missing on something very, very important, and you never know which kind of question or which question may come. We are doing a whole soul preparation. So if you want to join and of course get better marks, have an idea of PYQ questions, questions that could be expected, so you can just join these sessions free LUPGET series, and they'll be really, really helpful. If you don't do anything else, even then you'll be able to qualify the exam and get the seat. Okay, so let's quickly begin with paper for today, and I hope you have done your homework and you've got the complete idea of the paper and have covered the paper in detail earlier, or maybe in a summarized way. Even that would be okay if you are at preparing at the last moment. But you have to do this much at least, that you are aware of at, at least the summaries, right? So yeah, let's quickly begin with the 100 MCQs of paper. So we will be first beginning with the discussion of paper. So you might be thinking why we are discussing the paper first, because we have already discussed syllabus, yes, but discussing paper here means that we are also revising the, like, what is there in the paper and who wrote what, the author's name, the writer's and poet's name. Also we get it clear here in only here, just like that. Okay, so unit 1, which is very important, of course the question might come on authors and poets, who wrote this work, etc. So types of prose, we have prose styles: autobiography, biography and memoir, travelogue, periodical essays, formal essays, familiar essays, पोएटिक प्रोज, प्रोज ऑफ थॉट. ओके, सो दिस ऑल वी हैव टू कवर. इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं कि इनके क्या हैं. कुछ भी दे दिया, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है पूछ लिया, या मैच द कॉलम में दे दिया, एंड कुछ एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव यूनिट 2, फ्रांसिस बेकन ऑफ स्टडीज. फ्रांसिस बेकन के एसेज में यूजुअली आपको आगे ऑफ वर्ड मिलेगा, सो इट्स आपके कोर्स में तो है ही है, यही वाला जो ऑफ स्टडीज है वो बेकन का ही है. सो इसे आप याद रखेंगे, दैट इज फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज है. ओके, देन जॉन मिल्टन का बुक्स एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एरियोपैजिटिका. So this one is like licensing on books पर था, and yeah, this one is also one of the most important. इससे आपके नेट्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं, so this is so important. आज अगर आप पढ़ लेते हैं आपके आगे तक काम आएगा. नेट में क्रोनो में लगाने के आ गए थे, इसके इवेंट्स के इसमें क्या क्या कहा जाता है, लाइन से लगाइए उसको, so you can understand the importance of this essay. Unit 3, जोसेफ एडिसन, periodical essays, essay number 124 in the spectator है ये, और periodical essay. तो हमने याद कर लिया कि ये essay number 124 है, ठीक है, इन द स्पेक्टेटर, और क्या नाम है, periodical essay, जो कि किसका है, जोसेफ एडिसन का. अब यहाँ से सिर्फ जोसेफ एडिसन के ऊपर क्वेश्चन नहीं बन सकता, बल्कि और बन सकते हैं, जैसे कि पीरियोडिकल्स के ऊपर, कि ये पीरियोडिकल किसका है, रैमलर किसका है, टैम्बलर किसका है, ठीक है. सो हम ये भी आगे की वीडियो में अलग से कवर करेंगे. अगर इफ वी विल नॉट बी कवरिंग इट हियर, सो वी विल बी कवरिंग थिंग्स इन डिफरेंट वीडियोस जो इससे कुछ हटके होंगी, जो हम सोच सकते हैं कि सिर्फ सिलेबस ही नहीं आ रहा है, उसके अराउंड की चीजें, उस ऑथर से रिलेटेड चीजें, या ये पीरियोडिकल ऐसे तो उससे रिलेटेड चीजें भी जो आ सकती हैं, हम हर चीज करेंगे. मिसलेनियस टॉपिक्स वाली वीडियोस भी करेंगे हम, ठीक है. सो हम ऑल राउंड प्रिपरेशन करें, जैसे कि मैंने आपको बताया है. यूनिट 4 है आपका रिचर्ड स्टील का द स्पेक्टेटर क्लब. ओलिवर गोल्डस्मिथ का, ओलिवर गोल्डस्मिथ जो है, अब देखिए गोल्ड वाला आदमी ब्लैक के साथ मैच हो रहा है, मैन इन ब्लैक. इससे आपको ऑथर याद रखना है,
ओलिवर गोल्डस्मिथ, गोल्ड है तो द मैन इन ब्लैक, ठीक है। चार्ल्स लैम्ब, लैम्ब जैसे छोटे बच्चे का लग रहा है कुछ, सो इट इज ड्रीम चिल्ड्रन, और चार्ल्स से सी एंड चिल्ड्रन से सी, राइट, सो इट इज ड्रीम चिल्ड्रन। चार्ल्स लैम्ब ड्रीम चिल्ड्रन, बच्चों जैसा लग रहा है लैम्ब कुछ, तो ड्रीम चिल्ड्रन हो गया। ओलिवर गोल्डस्मिथ गोल्ड है तो ब्लैक आएगा, द मैन इन ब्लैक हो जाएगा। रिचर्ड स्टील, स्टील है एस से, स्पेक्टेटर क्लब है एस से, सो रिचर्ड स्टील एंड स्पेक्टेटर क्लब, याद रहेगा। जोसेफ एडिसन का, जोसेफ एडिसन का हमारा पीरियोडिकल ऐसे है, ओके, पीरियोडिकल ऐसे के लिए बहुत बहुत फेमस है हमारे जोसेफ एडिसन, जोसेफ एडिसन। सो पीरियोडिकल ऐसे आएगा, हम किसको करेंगे, जोसेफ एडिसन को करेंगे। बेकन का बता दिया, ऑफ 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 ज्यादातर दिखता है, सो ऑफ स्टडीज हमारे कोर्स में भी है। जॉन मिल्टन का बुक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स इज बाय जॉन मिल्टन, और एरियोपेथेटिका भी उन्हीं के द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 8 के पास हम जा चुके हैं। सो लेट्स क्विकली बिगिन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फेमिलियर ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं गाइस, कैरेक्टरिस्टिक जरूर आ सकते हैं। सो फेमिलियर ऐसे किस टाइप के होते हैं, हाईली टेक्निकल एकेडमिक ऐसे होता है, नो, ओके, हम एलिमिनेशन मेथड जरूर लगाएंगे, कैंसिल करते जाएंगे, जो लग रहा है ये तो हो ही नहीं सकता। इनफॉर्मल पर्सनल ऐसे इन कन्वर्सेशनल स्टाइल, यस, राइट। हिस्टोरिकल नरेटिव नहीं होता है इसमें, साइंटिफिक रिपोर्ट हमें नहीं देनी होती इसमें। सो फेमिलियर ऐसे इज इंटीमेट, है ना, जो पास की होती है, क्लोज होता है, ठीक है, पर्सनल होता है, कन्वर्सेशन होता है जिसमें आपको कॉन्वो जैसा दिखेगा, कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है। चार्ल्स लैम्ब इसके ग्रेटेस्ट इंग्लिश प्रैक्टिशनर है, मतलब वो बहुत सारे वर्क में अपना फेमिलियर ऐसे आप कह सकते हो, पर्सनल टाइप के जो एसेज होते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। सो याद हो जाएगा, फेमिलियर मतलब जिससे आप फेमिलियर हैं, जिससे आप क्लोज हैं, जिससे आप रिलेटेड हैं। सो हम क्लोज, इंटीमेट, पर्सनल, कन्वर्सेशन वर्ड से याद रखेंगे। फेमिलियर इसके, फेमिलियर के ये कीवर्ड्स हैं, ओके। नेक्स्ट, which pair is correctly matched, बताओ। बायोग्राफी written by subject himself, क्या सब्जेक्ट खुद लिखता है अपनी बायोग्राफी, नो, ऑटोबायोग्राफी इंसान खुद लिखता है, एंड बायोग्राफी उसकी कोई और लिखता है। सो पूछा क्या है, करेक्टली मैच, हम पहले लाइन कर लेंगे नॉट करेक्टली या करेक्टली, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, इसकी वजह से हमारे काफी क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि हम अक्सर नॉट भूल जाते हैं, बड़े से बड़े एग्जाम्स में भी हमें 10 बार बताया जाता है, पर हम ध्यान नहीं रखते ये बात, सो हमें अंडरलाइन कर लेनी है। इट्स ओके, इट्स ह्यूमन माइंड, भूल जाता है, नो इश्यूज, हम फ्लो में आंसर मिलते ही टिक कर देते हैं, नो इश्यूज, हम बस लाइन कर लेंगे, हम ये कोई बहुत खराब बात नहीं है, इट्स ओके, हैपेंस विद एवरीबॉडी, बस लाइन कर लेना, नॉट है कि करेक्टली पूछा है क्या, जिससे कि आप आंसर कभी गलत ना करो। सो बायोग्राफी रिटन बाय सब्जेक्ट हिमसेल्फ तो गलत हो गया, है ना, कोई और लिखता है। मेमोयर क्या होता है, कंप्लीट अकाउंट ऑफ एन इंटायर लाइफ, जी नहीं, ये छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, आपकी इंटायर लाइफ का कोई छोटा सा मेमोरी, मेमोयर से मेमोरी याद करो कि एक कोई इंसिडेंट की बात हो रही होगी। ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय द सब्जेक्ट हिमसेल्फ, अभी हमने डिस्कस किया, बिल्कुल सही है, ओके, दिस इज टिक। एंड ट्रैवलॉग क्या होता है, इमेजिनरी जर्नी नहीं होती है ट्रैवलॉग, जो आप ट्रैवल एक्चुअल में कर रहे होते हैं, सो आप एक ट्रैवलॉग लिखते हैं, या अपने ट्रैवल के बेस पे आप लिखते हैं ट्रैवलॉग, सो दिस इज रियल, राइट। सो आंसर इज ऑटोबायोग्राफी स्टोरी ऑफ फन्स ऑन लाइफ, और बायोग्राफी स्टोरी बाय समवन एल्स, कोई और लिखता है हमारी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी हम ऑटो खुद ही लिख लेते हैं, ठीक है, इससे याद रखना। अरेंज द फॉलोइंग पोएट्स राइटर्स क्रोनोलॉजिकली, फ्रांसिस बेकन है, जॉन मिल्टन है, जोसेफ एडिसन है, एंड देन चार्ल्स लैम्ब है। तो सबसे पहले ही हमारे फ्रांसिस बेकन आ जाते हैं 1561 में, मिल्टन आ जाते हैं 1608 में, एडिसन 1672 में, एंड देन चार्ल्स लैम्ब आते हैं 1775 में। तो याद रखना है इन सब में, बेकन सबसे ओल्ड में आएंगे तो 1561 हो जाएगा। देन वी हैव जॉन मिल्टन, यानी कि पुरिटन एज से जो है बिलोंग करते, फिर जोसेफ एडिसन आएंगे, एंड आखिरी में हमारे क्या आ रहे हैं, लैम्ब, आखिरी में क्या आ रहे हैं, लैम्ब आ रहे हैं, याद रखना है हमें 1775 में। All right, so I hope you have got this one also, and the option B is correct. 1 2 3 4, it's correctly line से ही लगा है, आप देख सकते हो। Now match Bacon, Milton, Goldsmith, Lamb with
ड्रीम चिल्ड्रन, बुक्स, द मैन इन ब्लैक, ऑफ स्टडीज। बताओ मिल्टन का इसमें से कौन सा वर्क है? अभी हमने पढ़ा था राइट कि मिल्टन की बुक्स वाली है एरियोपेजाटिका से। ओके, गोल्डस्मिथ, ऑलिवर गोल्डस्मिथ, गोल्ड से मैंने बताया था मैन इन ब्लैक हो जाएगा। किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, हमने ट्रिक से याद किया है ये राइट। लैम्ब, लैम्ब बच्चों जैसा कुछ दिख रहा है, सो इट्स ड्रीम चिल्ड्रन। देखा ट्रिक से आपको कितनी इजीली याद हो गया है राइट। सो यस वी हैव मार्क्ड इट ऑल। एंड बेकन, बेकन क्या हम गलत कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, हमें पता है ऑफ स्टडीज बेकन का है, ऑफ से हमें पता है इट्स बेकन। ओके, सो हाउएवर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं गाइस, सारे ऑफ से वर्क बेकन ही नहीं होते हैं। सिर्फ आपके इस पेपर के लिए मैं बता रही हूँ कि मोस्टली वर्क मिल्टन ने लिखे, सॉरी बेकन ने लिखे हैं जो ऑफ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एंड हमें अपना वर्क याद करने के लिए ये ट्रिक रखनी है, मोस्टली ऑफ से स्टार्ट होते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, दूसरे लोगों ने भी कुछ लिखे हैं, ठीक है। सो हमेशा के लिए ये नहीं कि बस ऑफ है अरे बेकन। ऑब्वियसली इफ यू डोंट नो द आंसर, नहीं पता है आंसर, तब बेकन कर सकते हो क्योंकि मोस्टली उनके हैं। तो अगर तुक्का टाइप मारना है किसी पेपर में तो या यू कैन यूज दिस ट्रिक, बट यहाँ के लिए तो ये ट्रिक इज गुड टू गो। ओके, सो ये हमने बिल्कुल अच्छे से मैच कर लिया है गाइस। तो देख लेते हैं, हमने बेकन को मैच किया ऑफ स्टडीज को, यानी ए का 4 होना चाहिए। इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, बाकी के ऑप्शंस एलिमिनेटेड, हटा दिए तुरंत हमने। हमें आंसर कितनी जल्दी मिल जाता है हटाने से राइट। सो मिल्टन का आपका बी का 2 है, बी का 2 एंड बी का 3 हो गया, ये तुरंत हट गया एंड आंसर इज बी एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो दीज आर द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट इन द एरी सिलेबस। ओके, we have matched it correctly, right? Francis Bacon is popularly known as, Francis Bacon को हम properly क्या कहते हैं? He is known as the father of English essays, very important. Bacon introduce करते हैं concise aphoristic English essay को, और इनको हम कहते हैं father of English essays, Bacon को कहते हैं। क्यों? ये और aphoristic style क्या है? ऐसे चीजें जो आपको you know as a quotations दिखेंगी, maxims दिखेंगे, proverbs दिखेंगे, जिनको आप यूज भी करते हो आगे चल के, ठीक है। सो दीज आर मतलब वो बहुत फेमस हो जाती हैं, मैक्सिम्स टाइप के होते हैं, कोटेशंस बन जाते हैं, जिनको आप जगह जगह अपनी कॉन्वो में, बातों में या फिर टेक्स्ट में भी लिखते वक्त यूज करते हो। ओके, सो बेकन्स प्रोज स्टाइल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, कैसा है उनका? यूफेमिस्टिक, ये तो कुछ यू नो अच्छा सा होता है, हमने पढ़ा है। एफोरिस्टिक स्टाइल है, अभी ही हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है। दिस इज लाइक योर मेमोरी टेस्टिंग, आपने अभी पढ़ा ये चीज। बेकन का एसेज कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्ट मेमोरेबल मैक्सिम्स, जो हमेशा याद रखते हैं, ऐसे टाइप के मेमोरेबल मैक्सिम्स होते हैं जो हम यूज भी करते हैं। जैसे कि ये आप लाइन सुनिए, रीडिंग मेक इट अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, ये आपकी अंडरलाइन में भी आ सकता है, like dash dash fill in the blanks करके दे दिया। and believe me this is a very good question कि आपको dash dash करके दे दिया fill in the blanks में and भरो अब, ठीक है। so it's like सबसे पहले कि रीडिंग में क्या था, रीडिंग क्या बनाती है? फुल मैन, ठीक है। कॉन्फ्रेंस क्या बनाती है? रेडी मैन, बट राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, मतलब आप जब रीड करोगे ना तो आप एक फुल मैन बनोगे, आपको अच्छी खासी नॉलेज आएंगी, सब कुछ हो जाएगा, भर जाएगा नॉलेज आप। जब आप कॉन्फ्रेंस करोगे यानी उससे रिलेटेड, मान लीजिए मैंने ये चीजें पढ़ी हुई हैं राइट, व्हेन आई एम डिस्कसिंग इट विद यू पीपल, यहाँ पर हम कॉन्वो कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको अगर आपने यहाँ से पढ़ा, फिर उसके बाद आपने डिस्कशन किया इसके बारे में कमेंट सेशन में, या अपने आसपास किसी को बताने लगे, अच्छा पता है बेकन कैसे ये होता है, पता है बेकन इज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, क्यों कहते हैं उनकी एफोरिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग की, ये पता है क्या होती है, ऐसे करके आपने कभी अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर ली, समझ ली। सो व्हेन यू डू दिस एंड आप थोड़ा बहुत डिबेटिंग की, ये सब किया, तो आप ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके थ्रू आपको हमेशा याद रहेगी। किसी चीज पे अगर आपने डिबेट कर डाली हो कि अच्छा ये लड़की, इस कैरेक्टर ने ये किया है, अरे मुझे ये इसका फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू लगता है, अरे ये सही है ये गलत है, ऐसे करके आपने डिबेटिंग की है, कुछ किया, सो आपको वो बातें हमेशा याद रहेंगी ज्यादातर। सो इट मेक्स यू रेडी मैन, रेडी मैन मतलब वो इंसान जिसके पास सिर्फ और सिर्फ नॉलेज नहीं है, फुल मैन ही नहीं है रीडिंग की वजह से। मैंने रीडिंग खूब सारी की है, मेरे पास नॉलेज है, बट रेडी कब मैं रहूंगी? जब मैंने उसके ऊपर काफी डिस्कशन कर लिया एंड मैम ने ये पूछा क्वेश्चन, आई एम लाइक अरे मैम लेट मी टीच पीपल, है ना, मैं बताती हूँ, ठीक है। सो तब
आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होगा, आप एक रेडी मैन रहोगे, ठीक है। बट जब आपने उस चीज को सिर्फ डिस्कस ही नहीं किया, उसके साथ साथ नोट डाउन किया, अंडरलाइन किया, ठीक है, मार्क किया एंड उसको रिवाइज करते हैं आप। सो जो आपका होता है ना, आपके जितने आपके सेंसेस चलते हैं टू लर्न एंड अंडरस्टैंड समथिंग, उतना ज्यादा ब्रेन को याद रहता है। यानी कि मैं अगर आंखों से देख रही हूँ, सुन भी रही हूँ, है ना, साथ में साथ मैं अभी अगर लिख भी रही होती, तो मैं अलग लेवल इस चीज को याद कर ले जाती। ओके, सो इट्स लाइक कि मैंने कोई चीज रीड की, मेरे मैं फुल मैन बन गई, मैंने कोई चीज कॉन्फ्रेंस भी कर ली उसके ऊपर, तो मैं एक क्या बन गई, रेडी मैन बन गई। कभी भी मुझसे भैया पूछ लीजिए या आस्क मी। ओके, एंड जब मैंने इसको लिख लिया, मैंने अपने हाथों को भी साथ साथ चलाया, सो माई माइंड विल रिमेम्बर इट बेटर एंड आई विल बी एन एग्जैक्ट मैन, जो कि उसका आंसर किसी भी तरह से लिख सकता है, बता सकता है, सब कुछ कर सकता है। सो दिस कोटेशन अपीयर्स इन, कहाँ मिलता है ये? ऑब्वियसली ये हमें कहाँ पर मिलेगा? ऑफ स्टडीज में मिलेगा। वो बताते हैं किस तरह से एक इंसान को स्टडी करनी चाहिए, तो उसी में मिलेगा ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आदर्शन है, बेकन बिलीव करते हैं स्टडी शुड सर्व प्रैक्टिकल लाइफ। रीजन है कि ये अपोज यूजलेस एंड एक्सेसिव बुक लर्निंग। ध्यान से समझिए, क्या बेकन बिलीव करते हैं कि स्टडीज प्रैक्टिकल लाइफ सर्व करनी चाहिए? यस। रट्टू तोता बनने के लिए या दिन भर आपको पढ़ते रहने के लिए नहीं कह रहे, वो प्रैक्टिकली चीजें सीखने के लिए कह रहे हैं। ही अपोज यूजलेसनेस एंड एक्सेसिव बुक लर्निंग। सिर्फ आप एक बुक वॉर्म बने हुए हैं, पढ़ते जा रहे हैं बुक, और ये सब नहीं कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, लोगों से बातें नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकली उस चीज को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, you would be not having, you will just be having simply knowledge and you won't be able to apply to your life and you won't be able to do anything with that. ठीक है, so yeah, option A is correct, दोनों सही है, explanation भी correct है, because अगर हम check करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 to 16 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बेकन, स्टडीज सर्व फॉर, स्टडीज किसके लिए सर्व करती है बताइए? डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। यस, दिस इज करेक्ट, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जैक्ट लाइन ऑफ ऐसे से उठाया गया है, ठीक है। सो दिस ट्रेड इज सेंट्रल ऑफ स्टडीज एंड फ्रीक्वेंटली इस चीज को टेस्ट करते हैं एग्जामिनर्स। सो डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट रिकमेंडेड बाय बेकन? बेकन कौन सा इसमें से स्टेटमेंट रिकमेंड नहीं करते? रीडिंग ऑल बुक्स इक्वली, सारी बुक को इक्वली पढ़ो। पहले तो नोट पे हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सारी बुक्स को क्या हमें इक्वली पढ़ना चाहिए गाइस, बताइए। डज ही से दैट? यस, ही सेज दैट कि इक्वली पढ़ो सारी बुक्स को। जी नहीं, कुछ को तो च्यू कर जाना है, याद आया, कुछ को सॉलो कर जाना है ना। सो ऐसा तो नहीं है, ये नहीं कहते हैं, पर क्वेश्चन में नॉट ही पूछा गया है, तो इस वजह से ये आंसर होना चाहिए। बाकी ऑप्शंस भी रीड कर लेते हैं। ओके, डिफरेंट बुक्स रिक्वायर डिफरेंट रीडिंग मेथड्स। हाँ, ऑफ कोर्स डिफरेंट बुक्स के लिए डिफरेंट मेथड्स है, वही तो हमने बात की, किसी को सॉलो कर लो, किसी को च्यू कर लो, होता है ना, कुछ को एकदम टीचर कहती ये इतना इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको घोल के पी जाओ। ओके, एंड कुछ को होता है कि इसको च्यू कर लो, अच्छे से समझो इसको, अंडरस्टैंड इट वेल, है ना, और कुछ को एकदम सॉलो कर जाओ। एंड दिस इज लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग हैबिट्स होने चाहिए। Some books should be tested. कुछ बुक्स को हमें टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट सिर्फ चख लिया, है ना, चख लिया, बस ऊपर ऊपर देख लिया, काइंड ऑफ, है ना। यस, ये बात भी कहते हैं। सम बुक्स डिजर्व केयरफुल रीडिंग स्टडी, केयरफुल स्टडी जरूरत होती है कुछ को। हाँ बिल्कुल, सो यस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है क्योंकि नॉट पूछा था। सो बेकन डिस्टिंग्विश कर रहे हैं बिटवीन बुक टू बी टेस्टेड, सॉलोड एंड डाइजेस्टेड, जैसे हमने बताया। सो विच, और ये ऐसे आई हैव कंप्लीटेड लाइन बाय लाइन, एक एक चीज समझाते हुए बहुत अच्छे से। तो अगर अभी तक नहीं समझ आया है, गो चेक इट आउट। एक एक लाइन मैंने पढ़ाई है अच्छे से, लाइन बाय लाइन, एंड इससे क्वेश्चंस बिलीव मी लाइन बाय लाइन बनते हैं। मैंने बताया कि नेट में क्रोनो आ गई थी कि क्या लाइन कब आई है, लाइंस को क्रोनो में लगाइए। सो आप सोच सकते हैं इसकी लाइंस कितनी इंपॉर्टेंट है। Which famous classification of book is given by Bacon? Bacon कैसा बोलते हैं? टेस्टेड, सॉलोड एंड डाइजेस्टेड। मैं बी पे इसलिए कूद पड़ी क्योंकि मैंने इसको इतने ढंग से पढ़ा है कि वो योर आईज विल कैच दोज वर्ड्स।
जैसे टीचर आपकी जब चेकिंग कर रही है तो कीवर्ड्स ढूंढ लेती है आंसर में, तभी तो बहुत जल्दी जल्दी कॉपी चेक करनी होती है। ओके, सो आपको इस लेवल का, इसीलिए मैं कह रही हूँ वो वीडियो देख लीजिए, लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे, आपकी आंखें डायरेक्ट आंसर पे जाएंगी। सेक्रेट सेकुलर हो ही नहीं सकता, ये सब चीजें एंशियंट मिडिवल मॉडर्न पोएट्री ड्रामा प्रोज है ही नहीं। आपने इवन इफ ना पढ़ा होता, अभी ऊपर ही डिस्कस किया है देखो, और एक्सप्लेनेशन में लिखा है, उसके बाद तो ये आंसर ऐसे ही फटाक से कर लेते हैं आप, राइट। सो अब मैच करते हैं सब्जेक्ट को इफेक्ट से। हिस्ट्री बताओ, हिस्ट्री का कैसा, वो अलग अलग सब्जेक्ट को बताते हैं कि ये सब्जेक्ट पर आपको ये बनाता है, ये सब्जेक्ट आपको ये बनाता है, ठीक है। सो या हिस्ट्री, हिस्ट्री आपको क्या बनाती है, एंड देन पोएट्री, मैथमेटिक्स, नेचुरल फिलोसफी, आपको ये सब चीजें कौन क्या बनाता है बताना है। सो हिस्ट्री जो है दैट मेक्स यू वाइज। ओके, देन वी हैव आपकी पोइट्री। पोइट्री कैसी बनाती है हमें, विटी बनाती है। ओके, पोइट्री हमें कैसे बना देगी, विटी बना देगी। नाउ नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स। ये आपको सटल बना देती है, क्योंकि आप इतने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जहां एक प्रॉब्लम भी गड़बड़ होता है, जो वो कहते हैं ना, जिस इंसान को बहुत गुस्सा आती है उसे मैथ लगवानी चाहिए, क्योंकि वो आपको पेशेंस लेवल दिला देता है। क्योंकि जहां एक पॉइंट भी गलत हुआ, आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। सो इस चीज को करने के लिए धीरे धीरे आपको पेशेंस बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट मेक्स यू सटल। एंड देन वी हैव नेचुरल फिलोसफी, जो आपको क्या बनाती है, वेरी इजी पीजी। अगर नहीं भी पढ़ा होता, सबको पता है कि फिलोसफी क्या बनाती है, डीप बनाती है। याद रखेंगे इस बात से, फिलोसफी डीप बातें करती है, तो ऑब्वियसली क्या बनाएगी, डीप बनाएगी, ठीक है। मैथमेटिक्स सटल, ऐसे जल्दी सटल ऐसे आप काम करेंगे, सटल बना देती है आपको, ठीक है। एंड आप बिल्कुल भी पेशेंट हो जाएंगे, पेशेंस हो जाएंगे, आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा अगर आप मैथमेटिक्स लगाएंगे। पोएट्री जो है वो आपको बता ही दी गई है, राइट। सो ऑप्शन ए का आपका हो जाता है 2, दैट इज हिस्ट्री वाइज बनाती है पोएट्री आपको, विटी बनाती है। आपको याद रखना है कि सबसे जो अच्छी वाली चीज है, एकदम बढ़िया आप बात करें जो विट की, इट इज आर पोएट्री। सो या ऑप्शन ए इज करेक्ट, A 2 B 3 एंड C 1 एंड D we have 4, ठीक है। सो प्रोज जो है आपका, प्रोज स्टाइल ऑफ बेकिंग जनरली रिगार्डेड एज क्या माना जाता है, बताइए। लूज एंड इमोशनल होता है, बताइए। नो ऑफ कोर्स, प्रोज क्या लूज एंड इमोशनल होते हैं, तो एक तरह से हमारे को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, तो हम वैसे भी इसको एलिमिनेट कर देंगे। कंपैक्ट होता है, एपिग्रामेटिक होता है, यस। एपिग्रामेटिक का मतलब है ब्रीफ होता है, छोटा होता है प्रोज। ये नहीं है कि नॉवेल की तरह बहुत लंबा चौड़ा चला चौड़ा, ड्रामा की तरह बहुत डायलॉग्स हैं, नहीं, बट स्टिल इट इज ब्रीफ है, छोटा है, कंसाइज है, लेकिन प्रोफाउंड है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत ग्रेट चीजें कर रहा है, इम्पैक्ट बहुत अच्छा डाल रहा है, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। हाईली ड्रामेटिक बिल्कुल नहीं होता है, एंड कॉमिकल एंड सटारिकल नहीं होता है, ओके। सो विच वर्क इन इज बुक्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम Areopagitica, okay. याद रखना है, prescribed extract is taken from Meredith Areopagitica, Areopagitica. Okay, next. So, Areopagitica is primarily a defense of, ये किसका डिफेंस है, किसके अगेंस्ट, ये जो लाइसेंसिंग एक्ट आ गया था उसके अगेंस्ट था कि आप बुक्स की लाइसेंसिंग लगा रहे हो, तो इसकी वजह से हर चीज सेंसर होगी, है ना। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आएगी कि लोग अपनी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे खुल के। सो फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग उनको चाहिए थी, सो इसके अगेंस्ट वो लड़ते हैं, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन, अ गुड बुक इज, एक गुड बुक क्या होती है आप बताइए, अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली। पहली बात तो ओनली लगा दिया, ओनली लगाते हैं हमें इसको एलिमिनेट कर देना है, प्लस सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट थोड़ी है, क्या बता रहे हो, सिर्फ यही है बस, क्या कुछ भी, है ना। द प्रिसाइज लाइफ हुड, लाइफ ब्लड ऑफ मास्टर स्पिरिट, यस, ओके। नाउ सो नेक्स्ट हमारे हो जाते हैं 17 to 24 नंबर क्वेश्चन। एजर्शन रीजन सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। एजर्शन, मिल्टन कंपेयर कर रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड बुक टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ रीजन, कि डिस्ट्रक्शन गुड बुक का कर दिया तो डिस्ट्रक्शन रीजन का हो गया, जी हाँ। बुक्स प्रिजर्व द विजडम एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी, जी हाँ।
हमारी जो भी इंटेलेक्ट मैंने जो गेन की, मैंने जो भी किया, मैं अपना एक इंटेलेक्चुअल बंदा बुक में जो लिखा है, ठीक है, वो प्रिजर्व हो गया, वो मर के चला जाएगा बट वो प्रिजर्व रहेगा फॉर एजेस। तो आपने अगर उसको खत्म कर दिया तो आपने रीजन को खत्म कर दिया, ये बात भी सही है। सो बिकॉज लगाकर बात सही बन रही है, इसलिए ऑप्शनल हो जाता है वन की दोनों सही है, एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एरियोपेगमेटिका। तो बता दीजिए, ट्रैवलॉग तो बिल्कुल नहीं है, ट्रैवलॉग कहाँ से, इसमें आपको कुछ ट्रैवल करता हुआ स्टोरी कुछ दिख रही है, जर्नी दिख रही है, नहीं दिख रही है ना। तो पॉलिटिकल स्पीच एडवोकेटिंग फ्री एक्सप्रेशन की एडवोकेशन कर रहे हैं वो लाइसेंसिंग एक्ट के अगेंस्ट। इट इज अ प्रो स्टैक डिफेंडिंग इंटेलेक्चुअल लिबर्टी, बिल्कुल सही। 19 नंबर देख लेते हैं, विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच, बता दीजिए। बेकन का एफोरिस्टिक स्टाइल है, ये तो हमें पता है, ये बात सही है, बट इनकरेक्टली मैच पूछा है, हम लाइन इसीलिए कर देते हैं कि गलत ना करे भाई। ओके, लैम्ब का फेमिलियर ऐसे है, हाँ, बिकॉज वो पर्सनल ऐसे फेमिलियर ऐसे ही लिखते थे। मिल्टन का डिफेंस ऑफ फ्री प्रेस है कि नहीं बताइए। ऑफ कोर्स, अभी तो पढ़ा बुक वाले ऐसे में, एरियोपेगैटिका में से लिया गया है जो कि। सो एडिसन का रोमांटिक पोइट्री है क्या गाइस, बिल्कुल भी नहीं। सो एडिसन हमारे क्या लिखते थे, पीरियोडिकल्स लिखते थे जो सोशल रियलिटी चीजें दिखा रहे थे, है ना, और वो चाहते थे कि इससे लोग एंटरटेन तो हो ही, साथ साथ कुछ सीखें भी एंड चेंजेस लाएं मॉरल लेवल पर, है ना, सोशल लेवल पर। एडिसन इज फेमस फॉर हिज पीरियोडिकल एसेज इन द स्पेक्टेटर, नॉट रोमांटिक पोएट्री। जो आपके जोसेफ एडिसन है, उनका पीरियोडिकल ऐसे स्पेक्टेटर वाला वो फेमस है, ना कि ये चीजें। सो डिस्टिंग्विश कीजिए बेकन को फ्रॉम आपके लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब से। वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, ये मजा आएगा। सो बेकन क्या राइट करते हैं पर्सनली एंड लैम्ब इम्पर्सनली, आप बताइए। लैम्ब लैम्ब पर्सनली लिखते हैं ना, फेमिलियर ऐसे लिखते हैं। बेकन कैसे लिखते हैं, क्या इम्पर्सनली, क्या पर्सनली वो लिख रहे हैं, नहीं, बेकन पर्सनली नहीं लिखता, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इनके बीच में। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग गाइस, ये नहीं हो सकता, है ना। बेकन एसेज आर डायडैक्टिक, मतलब कोई मॉरल पर्पस भी सर्व कर रहे हैं, एफोरिस्टिक्स, मैक्सिम्स और ये सब प्रॉवर्ब्स निकल रहे हैं उनकी बातों से। लैम्ब्स आर पर्सनल एंड कन्वर्सेशन, लैम्ब के कैसे पर्सनल है, कॉन्वो टाइप दिख रहे हैं आपको, यस दिस ऑप्शन इज एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, बाकी भी पढ़ लेते हैं, हमें पूछा गया था, हमने बता दिया। बोथ राइट इन एग्जैक्टली द सेम स्टाइल, ऐसा नहीं है, स्टाइल में डिफरेंस अभी डिस्कस किया। लैम्ब रोड बिफोर बेकन, ऐसा नहीं है, आपने अभी क्रोनो की थी, बेकन पहले आए थे, है ना। सो ये आंसर भी गलत हो जाता है एंड बी इज द करेक्ट आंसर। बेकन टीचर्स दो कंसाइज मैक्सिम्स थ्रू कंसाइज मैक्सिम्स, और लैम्ब जो है वो चार्म कर रहे हैं विद पर्सनल रेमिसेंस एंड जेंटल ह्यूमर, मेमोरी बेस, ये सब चीजें उनके में दिखेंगी तुम्हें। ओके, और पर्सनल होगा। नेक्स्ट, द एम ऑफ स्पेक्टेटर वाज टू, स्पेक्टेटर का क्या एम था जरा बताएंगे। सो स्पेक्टेटर का प्रमोट साइंटिफिक डिस्कवरीज, ये कहां से आ गया भैया, ये सब नई बात है। सो रिफॉर्म सोसाइटी थ्रू मोरालिटी पोलाइट एंटरटेनमेंट, बिल्कुल सही बात है। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। encourage political revolution, पॉलिटिकल की बात नहीं आएगी गाइस। पॉपुलराइज रोमांटिक पोएट्री में तो ये बात ही नहीं, रोमांटिक पीरियड में चल रहा है, तो ये नहीं होगा। एडिसन सील्स और टू इम्प्रूव मैनर्स और मॉरल्स, वो मैनर्स और मॉरल्स भी देना चाहते थे लोगों को, साथ साथ एंटरटेनमेंट तो हो ही रहा था, है ना, एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये काम भी हो रहा है। स्पेक्टेटर फर्स्ट अपीयर कब होता है, इट इज 1711 गाइस। सो डेट्स आपको बिल्कुल याद रखनी है, रैम्बलर, टैम्बलर, स्पेक्टेटर सबकी याद होनी चाहिए, सारे पीरियोडिकल की हम एक अलग वीडियो में भी कर लेंगे, ठीक है। स्पेक्टेटर began publication 1711 and most influential periodical रहा है आपकी 18th सेंचुरी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, आपको मैच करना है, ठीक है। सो जोसेफ एडिसन, एडिसन का नाम आपने सुना एंड आपको मार्क कर देना है, ऐसे नंबर 24 124 जो था। रिचर्ड स्टील का आपका स्पेक्टेटर हो जाता है, एंड देन आपका फ्रांसिस बेकन देखो ऑफ स्टडीज होगा बिल्कुल। एंड क्या कोई ऐसा है जो फ्रांसिस बेकन को ऑफ स्टडीज मार्क नहीं कर रहा है, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हमने ट्रिक से पढ़ा है गाइस। देन चार्ल्स लैम्ब, बच्चों जैसा नाम है थोड़ा सा, और ड्रीम चिल्ड्रन की बात हो रही है, कोई इसको गलत करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है, मतलब आप ढंग से नहीं सुन रहे अगर आपका ये भी गलत हो रहा है। सो डी का 4 पीछे से चल लेते हैं थोड़ा सा, डी का 4 बहुत अच्छा किया हमने पीछे से चल के, बस दो आंसर मिल रहे हैं गाइस, आई थॉट वन ही होगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमने इन दोनों को तो एलिमिनेट कर दिया। देन हमने देख लिया फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज होना चाहिए, यानी सी का 3 होना चाहिए, क्या इनके पास सी का 3 है, नहीं है, चलो गो बाय 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 बाय। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट,
ठीक है। जोसेफ एडिसन का आपका एसे नंबर 124 है एंड रिचर्ड स्टील का आपका क्या है, स्पेक्टेटर क्लब है। ठीक है, आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया है। नाउ 24 देख लेते हैं, पीरियोडिकल एसे के बारे में बात कर रहा है। पीरियोडिकल एसे के बारे में बात कर रहा है तो फिर चैप्टर फ्रॉम अ नॉवेल है क्या? नो, नेवर। ये क्या है ना, नॉवेल का कोई चैप्टर थोड़ी होता है पीरियोडिकल ऐसे, वो तो अलग से पब्लिश हो रहा है ना। रेगुलरली पब्लिश ऐसे डिस्कसिंग सोशल, मॉरल एंड लिटरेरी टॉपिक्स। ये सिर्फ इसलिए नहीं सही क्योंकि बड़ा है, बल्कि सही बात कर रहा है। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 to 32, ये आपके जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील से हैं, जो कि हमारे पीरियोडिकल लिखते थे, पीरियोडिकल्स लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, अरेंज कर दो क्रोनोलॉजी में आपके ऑफ स्टडीज को। हमको तो लगता है कि बेकन पहले आते हैं, तो ऑफ स्टडीज तो वैसे भी इसमें सही है। सो ऑप्शन नंबर 1 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ए को मैंने कट कट कर दिया, डी को मैंने कट कट कर दिया, बिना सब कुछ पढ़े ही। देख रहे हो? ओके, एरियो Pagatica, The Spectator, Dream Children, लैम का है। एंड जहां तक आपको याद होगा, हमने लैम को बाद में देखा है। सो लैम को बाद में अगर, ओ ये क्या कर दिया मैंने, ओके, सो लैम को अगर बाद में देखा है गाइस, लेट मी इरेज इट। ओके, गुड गर्ल। नाउ ड्रीम चिल्ड्रन, लैम को बाद में देखा है तो 4th नंबर पे लैम को रखूंगी। ठीक है, 4th नंबर, ओ वेरी इंटेलिजेंट, आखिरी में सारे ऑप्शंस 4th पे ही लगा दिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी बचा है, इनमें से देखना है। ठीक है, इनको मैंने आखिरी में रख ही दिया था। अब तुम देख सकते हो कि उसके बाद आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, एंड देन उसके बाद स्पेक्टेटर का क्या आ जाएगा, जो उनके पीरियोडिकल्स है ना। सो इट्स 1 2 3 4, है ना? क्या, ऑफ कोर्स, यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो यू कैन सी द, आपको क्रोनोलॉजी में तो लगाना ही था। बेकन 1597, मिल्टन 1644, स्पेक्टेटर 1711 और लैम का 1822 में है। ठीक है, नाउ 26, द प्रिंसिपल ऑडियंस ऑफ द स्पेक्टेटर कंसिस्टेड ऑफ। कौन था उनका मेन ऑडियंस? क्या मिडिवल मॉन्क्स थे? मॉन्क्स नहीं थे उनके ऑडियंस, मिडिल क्लास एक न्यू इमर्ज हुई थी इसकी वजह से। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि उन्हीं के लिए लिखा जा रहा है एक तरह से, है ना। मॉरल वैल्यूज और ये सब किसको सिखा रहे हैं? हम मिडिल क्लास को सिखा रहे हैं, उन्हीं को सब सिखाया जाता है, कि इनको क्या ही सिखाएंगे। सो एजुकेटेड मिडिल क्लास रीडर्स, यस, क्योंकि अब मिडिल क्लास भी उभर कर आ रहा था। So option is this, option is correct. It was written for growing educated urban middle class. ठीक है, 27, assertion, Edison preferred gentle humor to harsh satire. कि एकदम harsh satire नहीं, gentle humor रखते हैं। ठीक है, सही बात है। He believed moral reform could be achieved more effectively through refinement than ridicule. कि आप किसी को ridicule कर दो, उससे अच्छा है आप morally उनके अंदर reform लाओ। Through his periodicals he tried to do that, है ना। सो दोनों बातें बिल्कुल सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे कॉज लगाकर अगर हम देखें तो। ठीक है, एडिसन ऐसे इज करेक्ट सोसाइटी थ्रू पॉलिश वेट रादर देन सिवियर अटैक की जगह। ठीक है, नाउ क्या नहीं है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडिसन्स प्रोज? नहीं को हमने अंडरलाइन कर लिया। सो क्या आपको क्लैरिटी दिखती है? हाँ दिखती है, तो बात भी अच्छी है। सिंप्लिसिटी दिखती है? यस दिखती है। कोई एज सच बहुत ज्यादा जार्गन्स का यूज नहीं होता है ना। जार्गन्स मतलब कि टेक्निकल वर्ड्स जो कि हर इंसान को नहीं समझ में आएंगे, जो उस इंडस्ट्री से या उस चीजों से रिलेटेड होगा वो नहीं समझ में आएगा। वायलेंट इमोशनल आउटबर्स्ट, ये नहीं होता है। ठीक है, वो इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं हो रहा है कि मैं अपनी सारी इमोशनल, मेरे अंदर जो भी चल रहा है वो मैंने निकाल के धर दिया, नहीं, ऐसा नहीं था। ठीक है, पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, कौन सा है? एडिसन का ग्रेसफुल प्रोज होता है। ओके, दिस इज राइट, वो बहुत हार्श नहीं होते हैं उनके, है ना। स्टील वार्म कन्वर्सेशनल स्टाइल रही है, बिल्कुल सही बात है। बेकन का एफोरिस्टिक स्टाइल, तो बिल्कुल ही सही बात है ना। मैक्सिम्स और ये सब निकल आते हैं उनके ऐसे से। मिल्टन का फेमिलियर ऐसे रहा है, बताइए जरा। नो, मिल्टन पॉलिटिकल बात करें यहाँ पर, उनका पर्सनल ऐसे नहीं रहा है। दिस इज सो वेरी बेसिक, है ना, दिस इज सो वेरी बेसिक। सो ये तो हमें पता ही है। सो डी इज करेक्ट, मिल्टन रोट आर्गुमेंटेटिव प्रोज, है ना, जिसमें वो आर्गुमेंट्स अपने रख रहे हैं, नॉट फेमिलियर, यानी कि पर्सनल एसेज नहीं थे, पॉलिटिकल थी भाई बात। वो लाइसेंसिंग की बात कर रहा है बंदा, तुम कह रहे हो कि पर्सनल ऐसे हो गया, ऐसा कैसे होगा, है ना। सो दिस इज रॉन्ग। द मेंबर ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब प्राइमरी रिप्रेजेंट्स, प्राइमरी क्या रिप्रेजेंट करता है स्पेक्टेटर क्लब के मेंबर्स? सो
कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी, यस, है ना। कैरेक्टर्स फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी बिल्कुल काट देना है, हिस्टोरिकल किंग्स के बारे में, शेक्सपियरियन हीरोज, ये सब नहीं, वो सोसाइटी के बारे में यहाँ पर बातें हो रही। सो ईच मेंबर सिंबलाइजेस अ सोशल क्लास, या फिर कोई ना कोई का टेम्परामेंट, की ऐसा आदमी है गुस्सैल, अच्छा, हंसने वाला, हंसमुख, ह्यूमरस, ये वो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स भी दिखेंगे, जैसे कि सर रॉजर डी कवर्ली रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, अर्बन मर्चेंट को दिखा रहे हैं या कंट्री जेंटलमैन, इट इज कंट्री जेंटलमैन। एंड गाइज आई हैव कवर्ड दिस सो ब्यूटीफुली, मैंने कैरेक्टर्स के लिए एक अलग सी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने तुम्हें सारे के सारे उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको इतनी फन वे में पढ़ाया कि मजा आ जाएगा, सच में बहुत मजा आएगा और याद रह जाएगा। मैंने ट्रिक दी है याद करने को, एक एक कैरेक्टर क्या है, कैसे, किस चीज से कैरेक्टर से एसोसिएटेड है, बिल्कुल बढ़िया से समझाया हो, तो उस वीडियो को जरूर जरूर से देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, नहीं मिल रही है पूछ लेना, जरूर देखना, वो ट्रिक है, याद रहेगी, ठीक है, मजा आएगा पढ़ने में। बहुत छोटी सी वीडियो है, सारे कैरेक्टर्स एक साथ कवर्ड, ठीक है। विच मेंबर ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब इज मर्चेंट, कौन सा स्पेक्टेटर क्लब का मर्चेंट है, वही देखो ये चीजें क्वेश्चन आ रहे हैं और ये सारे एक वीडियो अगर कवर हो सकते हैं, छोटी सी है, सो डू दैट गाइस प्लीज। ओके, नाउ सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट हैं आपके, क्या है, मर्चेंट हैं, ठीक है, correct. So I'm not going into detail because already video cover hai, so you have to watch that. Okay, question number 33 we have, match करिए character को identity से, ठीक है। सर रॉजर, विल हनीकॉम, कैप्टन सेंट्री, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट और मर्चेंट। सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट तक, ठीक है, फिर मर्चेंट कौन है, अभी तुमने पढ़ा भी है कि मर्चेंट कौन है। सो वी हैव सर रॉजर, सर रॉजर कौन है बताइए, कंट्री स्क्वायर, ओके। देन विल हनीकॉम, विल हनीकॉम हमारे कौन है, इट इज ऑप्शन नंबर, या विल हनीकॉम, हनी है, हनी, हनी से याद रखना है, हनी जैसा है ये बंदा, कैसा है, फैशनेबल जेंटलमैन, ओके। सो नेक्स्ट इज कैप्टन सेंट्री, कैप्टन सेंट्री क्या है महाराज, कैप्टन, कैप्टन वर्ड सुनते ही सबको समझ में भी आना चाहिए राइट, कि एक सोल्जर होंगे, सोल्जर हैं। सर एंड्रयू फ्री पॉट, मैंने फ्री पॉट से हमें याद रखना है, फ्री है, पॉट लगा है, तो अब बंदा क्या होगा यार, मर्चेंट होगा ना, फ्री पॉट, पॉट कहाँ होता है, ये मर्चेंट करते हैं, वहां पे रहते हैं मर्चेंट। सो दिस ऑप्शन इज ए करेक्ट, ए का 4, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 1। सो विल हनीकॉम इज बेस्ट नोन फॉर हिज, ये वही बंदा है छुरिया टाइप का। सो इट इज रिलीजियस डिवोशन, कहीं से भी नहीं। नॉलेज ऑफ फैशनेबल सोसाइटी, यस, उसको फैशनेबल सोसाइटी की नॉलेज है। मिलिट्री अचीवमेंट्स नहीं है उसके, साइंटिफिक डिस्कवरीज नहीं है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। He represents fashionable urban life and social manners को दिखाता है, ठीक है। कैप्टन सेंट्री जो है वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, बता दीजिए, फटाक से बता दीजिए, कैप्टन सेंट्री क्या सिंबलाइज कर रहे हैं। सो इज ही मिलिट्री ऑनर एंड डिसिप्लिन दिखा रहे हैं, कैप्टन है, ऑब्वियसली ये सब चीजें तो दिखाएंगे ही। कमर्शियल सक्सेस नहीं, रोमांटिक आइडियलिज्म कहाँ से आ जाएगा, मिलिट्री पर्सन है। कॉमिक फूलिशनेस नहीं है, ए इज करेक्ट। ही इज पोर्ट्रेट एज ऑनरेबल भी है और वो करेजियस भी है, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ तक ये सब चीजें देख रहे हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके इजीली कवर हो जाएंगे उस वीडियो से, वेरी इजी पीजी। एजर्शन, एडिसन एंड एडमायर करता है मॉडरेशन को, क्या एडिसन एडमायर कर रहे हैं आपके मॉडरेशन को, यस। His essays avoid extremes in both styles and opinion, वो एक्सट्रीम नहीं जाते हैं कि दम, मैंने जैसे हार्श भी नहीं है उनका, तो ऑब्वियसली एक्सट्रीम नहीं है। सो आंसर ए इज करेक्ट, बोथ assertion and reason are true and correctly explained भी कर रहा है। Which literary age is most closely associated with Edison on steel, से कौन सी एज एसोसिएटेड है, जरा बता दीजिए। रोमांटिक तो बिल्कुल नहीं होगा, वो लोग लिख ही नहीं रहे थे रोमांटिक चीजें। विक्टोरियन एज है क्या बताइए, इट्स द ऑगस्टिन एज। सो दे आर लीडिंग प्रोज राइटर्स ऑफ द ऑगस्टिन पीरियड। कौन सी एज है, ऑगस्टिन एज है, किसकी, जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील की। नेम भी फुल याद होने चाहिए। सो आंसर इज ऑगस्टिन एज, आंसर इज ऑगस्टिन एज। ऑगस्ट और स्टील, एडिसन और स्टील की कौन सी एज है, दिस इज ऑगस्टिन एज, ऑगस्टिन एज याद रहना चाहिए। Which quality distinguishes Steele's prose from Edison? Steele का prose Edison से कैसे अलग है बता दो। Great emotional warmth and spontaneity है, yes, उनके में ज्यादा है। So Steele is often considered more emotional, वो थोड़ी सी ज्यादा emotional है, while Edison जो है ज्यादा polished रहते हैं। ये आप होते हैं ना थोड़ा सा
एक हाई लेवल दिखाते हैं दूसरों के सामने, सो वैसा थोड़ा रहता है उनका ऑफिशियल टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट बेस्ट समराइजेस द कंट्रीब्यूशन, स्पेक्टेटर को कंट्रीब्यूशन कौन सबसे अच्छे से दिखा रहा है? इट इज पॉपुलराइज्ड द पीरियोडिकल एसे एंड रिफाइंड पब्लिक टेस्ट। इट पॉपुलराइज कर देता है किसको? पीरियोडिकल एसेस को, और रिफाइन कर देता है पब्लिक की टेस्ट को, बदल देता है, एक नए लेवल का टेस्ट अब डेवलप हो रहा है, राइट? So yeah, but statement best explain करता है कि एडिसन remains an important essay। क्यों है वो आज तक है यार, आप आज भी पढ़ रहे हो, क्यों ऐसा है बताओ? उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की है इंट्रोड्यूस? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत बात की बात है। ही कंटेम्प्स मोरालिटी, एलिगेंस, विट एंड क्लैरिटी इन प्रोज। क्या कंटेम्प्स पढ़ लिया गाइस मैंने क्या? ओके, ही कंबाइंड। कंडेम्स होता तो गलत कर देते, ठीक है, मैं गलत करनी चाह रही थी, देन आई रेड इट अगेन, इट्स कंबाइंड, तो कंबाइंड है तो बिल्कुल बात सही कह रहे हैं इन्होंने, ये सब चीजें कंबाइन की थी। बी इज सही, ठीक है, बी इज राइट। ये इट इज लुकिंग लाइक आई हैव सी को मैंने राइट कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, बी को राइट किया, ओके या okay, now move on to the 41 question. So 41 से 48 हम देखने वाले हैं हमारे Oliver Globes set Man in Black and Charles Lamb को Dream Children, है ना? तो आ जाइए बढ़िया से देख लेते हैं। The man in black appears outwardly to be dash, but inwardly is dash. Man in black बाहर से कैसे दिखाता है कि मैम अरे मैं इन लोगों को भिखारी लोग, इनको मैं पैसे वैसे नहीं, मतलब फालतू लोग हैं, है ना, गवर्नमेंट पता नहीं क्यों इनके ऊपर इतना खर्चा करती है, ये वो। एंड एक्चुअली बंदा बहुत इमोशनल है अंदर से, बहुत काइंड हार्टेड है, रोक नहीं पाता खुद को, अपना सब कुछ दे डालता है। सो इट्स चीयरफुल। क्या आउटवर्डली चीयरफुल है, अंदर से सेल्फिश है? नहीं यार, अभी तो बताया सब दे डालता है। मिजरली दिखाता है कि मैं कंजूस टाइप का हूँ, एंड एक्चुअल में है कैसा? जेनरस है बंदा। क्रूअल है क्या? बाहर से क्रूअल दिखाता है, अंदर से डिसऑनेस्ट तो नहीं है, अंदर से गलत हो गया। प्राउड है, अंदर से क्या एरोगेंट है? एरोगेंट भी गलत हो गया। So answer B is correct. So the man in black pretends to be cynical and miserly है वो, but वो बार बार ऐसे एक्ट करता है कि दिख जाता है वो कितना चैरिटेबल है, कितना जेनरस है, ठीक है। गोल्डस्मिथ यूजेस द कैरेक्टर ऑफ द मैन इन ब्लैक मेनली टू, क्यों यूज करते हैं वो कैरेक्टर? अटैक करने के लिए किसी रिलीजन को? बिल्कुल नहीं। सैटराइज द गैप बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, की इंसान कैसा दिखाता है और एक्चुअल में कैसा होता है। हम अगर टू जेनरस और वो दिखाएंगे ना, तो लोग हमें सोचेंगे कि अरे ये तो बड़ा इसको कभी भोंदू बना दिया जा सकता है, उल्लू बना दिया जा सकता है, अरे ये कैसे हैं, ऐसा टाइप का लोग कमेंट करेंगे, इससे डरते हैं लोग। एंड दैट्स व्हाई दे शो दैट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे नेवर क्राई, स्पेशली बॉयज, है ना, एंड ऑल ऑफ दैट। बट अंदर से दे आर इमोशनल, दे आर जेनरस, दे ऑल्सो वांट टू हेल्प पीपल आउट, ओके। सो नंबर मैच कीजिए। सो अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी दिखाता है ये बात, ठीक है। डिफेंड मोनार्की, ऐसा मोनार्की का तो कोई बात ही नहीं है। प्रमोट कॉमर्स, ऐसी भी कोई बात है नहीं, ठीक है। सो मैन इन ब्लैक, ड्रीम चिल्ड्रन, बेकन, एडिसन, इनको आपको मैच करना है, ठीक है। सो आपको जैसे ही बेकन का नाम पता चलता है, आप लोग ए फॉर सिक्स स्टाइल कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? बिल्कुल कर देते हैं, आप लोग बड़े अच्छे बच्चे हैं। फिर पर्सनल एसेज कौन लिखता था? हमारे चार्ल्स लैम्ब लिखते थे, और उनका ड्रीम चिल्ड्रन है, तो हमने ये कर देना है, राइट। सो देख लेते हैं सी का थर्ड कहाँ दिख रहा है गाइस? यहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, एंड इसमें भी नहीं दिख रहा है। ओह वाओ, वी गॉट द आंसर डायरेक्टली, आंसर ए है, ठीक है। सो या एलिमिनेशन मेथड इज सो इम्पोर्टेंट। देखो अभी मैं बैठ के अगर करती रह जाती बाकी भी क्वेश्चंस, तो मेरा टाइम और जाता। ऑल्दो इफ यू हैव टाइम, ऑफ कोर्स यूज इट, कि सारे कर लेते हैं, हाँ हमें एकदम कंफर्म हो पाएगा, नहीं है then please use the elimination method as soon as possible, जिससे आप फटाक से जल्दी से आंसर पे पहुंच जाएं। सिर्फ एक मार्क करते ही मैं आंसर पे पहुंच गई अपने यहाँ पर, ठीक है। सो ए का आपका 2 हो जाता है, एंड बी का आपका ए मैन इन ब्लैक, एंड दैट इज मैच विथ हिडन चैरिटी। ऑफ कोर्स वो मैन इन ब्लैक दिखाता कैसा है, और एक्चुअल में हिडन चैरिटी करता है वो। ड्रीम चिल्ड्रन पीरियोडिकल ऐसे, बी का 1 हम कर, ओके वेट नेट गाइस, बी ड्रीम चिल्ड्रन इज अ ड्रीम विजन, ओके। सो ड्रीम चिल्ड्रन एक ड्रीम विजन है। बेकन ए फॉरेस्टिक स्टाइल हम कर चुके हैं। एडिसन का जो है, एडिसन दैट इज डी, इट इज मैच विथ
पर्सनल एसेज, क्योंकि यहाँ पर एडिसन भी दिए हुए थे इसलिए हमें उन्हें पर्सनल एसेज से मैच कर दिया है। एंड ड्रीम विजन कौन सी पोएम है, कौन सा वर्क है यहाँ पर प्रोज का, ड्रीम चिल्ड्रन। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा ना दिया होता तो हम पर्सनल एसे ड्रीम चिल्ड्रन को कंसिडर कर सकते थे, बट मैचिंग में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि एडिसन यहाँ पर क्योंकि ड्रीम विजन दिया है और वो ज्यादा जल्दी मैच होगा आपके ड्रीम चिल्ड्रन से, क्योंकि यहाँ पर ड्रीम विजन है, वो अपने बच्चों के बारे में और ये सब ड्रीम कर रहा है, फिर एकदम से आखिरी में उठता है। ठीक है, सो विच क्वालिटी इज मोस्ट स्ट्रांगली क्रिटिसाइज इन द मैन इन ब्लैक, मैन इन ब्लैक में सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरी को सैटिराइज किया गया है गाइस? सो इज इट जेन्युइन काइंडनेस को तो नहीं किया गया है, हिपोक्रेसी बेस्ड ऑन आउटवर्ड जजमेंट, हम बाहर की जजमेंट से जो हिपोक्रेसी हमारे अंदर आती है। सो गोल्डस्मिथ रिमाइंड करते हैं रीडर्स नॉट टू जज पीपल मेयरली बाय अपीयरेंस, जैसा कि मैन इन ब्लैक यहाँ पर दिखा रहा है, मैं तो बड़ा वैसा हूँ, कोल्ड काइंड ऑफ बिहेवियर दिखा रहा है, मैं कभी किसी को पैसे नहीं देता, इन लोगों को तो उठा के डाल देना चाहिए, गवर्नमेंट पता नहीं क्यों इनके ऊपर इतना खर्चा करती है एंड ऑल ऑफ दैट, बट एक्चुअल में वो बंदा अंदर से देख रहे हो कैसा है। सो इट्स लाइक हमें कभी भी सिर्फ बाहर से इंसान को जज नहीं कर लेना चाहिए या एक इवेंट्स के थ्रू जज नहीं कर लेना चाहिए। नाउ 45 असर्शन, गोल्डस्मिथ कंबाइन करता है ह्यूमर को विद मॉरल इंस्ट्रक्शंस, हाँ ऐसा वो करते हैं। ठीक है, ही बिलीव एंटरटेनमेंट एंड एथिकल रिफ्लेक्शन कुड कोएग्जिस्ट, कि एंटरटेनमेंट भी हो रहा है साथ में मॉरल वैल्यूज हम एथिकल वैल्यूज भी डाल रहे हैं, वो कोएग्जिस्ट हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं, बिल्कुल बातें दोनों सही हैं, बिकॉज अगर आप देख रहे हैं तब भी। लाइक एडिसन, गोल्डस्मिथ टीचेस जेंटली थ्रू ह्यूमर, ह्यूमरिस्टिक वे में, थोड़ा आपको ह्यूमरिस्टिक लगेगा, हल्का फनी लगेगा एंड आप चीजें भी सीख रहे होंगे, लाइट रहेगी, हार्श टोन नहीं रहेगी। द मैन इन ब्लैक में आपकी कौन सी लिटरेरी टेक्निक डोमिनेट कर रही है? बताओ, एल्गोरी दिख रही है, एल्गोरी नो, आयरनी दिखती है, हाँ, क्योंकि वो एक्चुअल में खुद को क्या दिखा रहा है कि वो बड़ा वैसा है, कोल्ड है, एक्चुअल में होता कैसा है, तो आयरनी निकलती है। नरेटर की जो एक्सपेक्टेशन है कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रास्ट हो जाती है विद द रियलिटी, है ना, तो ये आयरनी क्रिएट करता है। क्रोनोलॉजी बताई है ऑफ स्टडीज बेकन का है, सो सबसे पहले ऑब्वियसली यही वाला आने वाला है, सो ए वन वन पहले आएगा, ये हटा दो, ये भी हटा दो, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट ऑप्शन इज स्पेक्टेटर, आपके एडिसन स्टील का हो जाता है, मैन इन ब्लैक आपके ओलिवर गोल्डस्मिथ का हो जाता है, देन ड्रीम चिल्ड्रन चार्ल्स लैम्ब हमने यूजुअली देखा हमारे इसमें पेपर में, वैसे भी लास्ट में आ रहे हैं, सो ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ which statement best describes Goldsmith's prose style? Goldsmith का prose style कौन डिस्क्राइब करा अच्छे से? आर्टिफिशियल होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप हमारे ऑथर के बारे में, रॉन्ग रॉन्ग। नाउ ग्रेसफुल, ह्यूमरस एंड ह्यूमेन, जी हाँ, हाईली साइंटिफिक नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं वो यहाँ बैठ के, ठीक है। सो इट इज डन बाय बेकन, नॉट हिम, सॉरी, ओके। ड्रीम चिल्ड्रन इज प्राइमली रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ड्रीम चिल्ड्रन किस फॉर्म में रिटन है बताइए? ड्रीम चिल्ड्रन क्या पॉलिटिकल पैम्फलेट है? नहीं, ये बुक्स में है ना, मिल्टन कर रहे हैं अभी जो मैंने बोला था, सो इट्स नॉट हिम, इट्स मिल्टन, है ना, मिल्टन। सो फेमिलियर एसे, पर्सनल एसे, ड्रीम चिल्ड्रन पर्सनल एसे, हाँ जी हाँ, देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, यही मैंने आपको मैच द फॉलोइंग में बताया था कि वहां पर अगर वो ना होता, आपका ड्रीम विजन ना होता, तो हम पर्सनल एसेज पे जाते, ठीक है। सो चार्ल्स लैम्ब्स एसे आर पब्लिश अंडर द स्यूडोनिम, किस स्यूडोनिम में पब्लिश होता है उनका? सो इट इज इलिया, ये बात हमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चार्ल्स लैम्ब के एसे इलिया नाम से पब्लिश होते हैं। सो लैम्ब्स एसेज आर कलेक्टिवली नोन एज द एसेज ऑफ इलिया, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो चिल्ड्रन इन द ड्रीम, चिल्ड्रन अल्टीमेटली प्रूव टू बी, क्या होते हैं वो? रियल चिल्ड्रन होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेबर्स होते नहीं, एक ड्रीम या इल्यूजन है, तभी ये ड्रीम विजन पोएम है, वर्क है, सॉरी, प्रोज। टचिंग एंडिंग रिवील करता है कि चिल्ड्रन एग्जिस्ट ओनली इन लैम्ब्स इमेजिनेशन, और वो रियलिटी में कभी हो भी नहीं पाएंगे, बिकॉज जिसको ये पसंद करता था वो अब किसी और से शादी कर चुकी है एंड अब उनके बच्चे तो होने भी नहीं सकते, ठीक है। So who is Alice in Dream Children?
एलिस कौन है ड्रीम चिल्ड्रन में? क्या लैम की वाइफ है या वुमेन हु लैम लव्ड बट नेवर मैरिड? यस, जिसे वो पसंद करता था, लव करता था, लेकिन कभी उसकी शादी नहीं हो पाई। एलिस रिफर्स टू एन साइमंड्स। ये एक्चुअल में रियल में कौन है? एन साइमंड्स। यहाँ पर एलिस नाम यूज हुआ है लैम का लॉस्ट लव जो कि उसे मिलता नहीं है। सो कौन है ये? एक्चुअल में एन साइमंड्स है, एन साइमंड्स है। याद रहेगा बिल्कुल। एलिस, जॉन, ब्रिजिट, मिसेस फील्ड, विट। हमको मैच करना है कि कौन क्या था, ठीक है। चार्ल्स लैम्ब के ही ऐसे से है ये ड्रीम चिल्ड्रन से, ठीक है। सो सबसे पहले आपका एलिस हो जाता है, अभी पढ़ा है, इट इज हर, इट इज हिज लॉस्ट बिलवेड, ठीक है। सो ए का 4 देख लो कहाँ है, ए का 4 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दोनों में हट जाता है एंड हमें आंसर डायरेक्टली मिल जा रहा है, दैट इज ए। सो दीज आर सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग लैम्ब्स ऑटोबायोग्राफिकल रेफरेंसेस। पहले हमने ए को 4 से मैच कर लिया है, देन बी हमारा आ जाता है, दैट इज कौन है? हमारे जॉन। जॉन उसका भाई था, है ना? सो बेटा था, ओके सॉरी, ड्रीम सन हो जाता है। एंड देन उसके पास ब्रिजिड आ जाती है, जिसको आखिरी में जिसका आपको पता भी चलेगा, एंड ऑफ कोर्स दैट इज अ सिस्टर। आखिरी में वो किसके साथ लेफ्ट रह जाता है? विथ हर सिस्टर ओनली, उसके सिस्टर के साथ वो आखिरी में रह जाता है। एंड यहीं पे एंडिंग होती कि ड्रीम था और अब बस सिस्टर के साथ है, ठीक है। तो ब्रिजिट है। मिसेस फील्ड जो है वो आपकी क्या हो जाती हैं? ग्रैंड मदर हो जाती हैं, जिनके बारे में, जिनका बारे में अच्छे से बताते हैं वो ऐसे के बारे में। सो मिसेस फील्ड जो है वो ड्रीम चिल्ड्रन में क्या सिंबलाइज करेंगे? अभी तो हमने ये पढ़ लिया कि मिसेस फील्ड जो थी वो ग्रैंड मदर थी बच्चों, ठीक है। तो वो क्या सिंबलाइज कर रही हैं? रीजन असर्शन है ड्रीम, ओके ये थे हम 54 क्वेश्चन पे हैं गाइस हम। सो ग्रीड, ग्रीड दिखा रही है, मॉरल डिग्निटी और चेरिश फैमिली मेमोरी को दिखाती हैं कि वो जिस घर में रहती थी उन्होंने कैसे उसको सजाए बनाए रखा था, जो कि उनका खुद का भी नहीं था तब भी। शी इज रिमेम्बर्ड विद डीप अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट। ओके, सो असर्शन है ड्रीम चिल्ड्रन कंबाइन कर रहा है फैक्ट को इमेजिनेशन के साथ। यस, वो फैक्ट्स भी बता रहे हैं। आपको दिख रहा है उनकी बिलव्ड एक्चुअली में थी, है ना? उनकी ग्रैंड मदर एक्चुअली में ऐसी होंगी, बट वो कुछ ड्रीम्स भी हैं, उनके चिल्ड्रन जो है वो ड्रीम है, वो रियलिटी नहीं है, कुछ चीजें अनरियल भी हो रही है। इमेजिनेशन और फैक्ट को जोड़ दिया गया है, बिल्कुल। द लैम्प, क्यों? बिकॉज लैम्प ट्रांसफॉर्म्स पेनफुल पर्सनल मेमोरीज टू आर्टिस्टिक प्रोज। जी हाँ, ये उनकी खूबी है ना? सो दोनों सही, एक्सप्लेन भी बढ़िया से कर रहा है। सो विच इमोशन डोमिनेट कर रहा है हमारे कंक्लूजन को ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन? ड्रीम चिल्ड्रन के कंक्लूजन को कौन सा इमोशन सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है? बताओ। क्या ट्रियम्फ हो जाता है? नहीं, वे बच्चे धीरे 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 उससे दूर जा रहे हैं, वो जगता है एंड ये ड्रीम था। कहाँ से ट्रियम्फ हुआ गाइस? नहीं हुआ। सो नॉस्टैल्जिया एंड पैथोस इज द करेक्ट आंसर, कि नॉस्टैल्जिया उसे होता है पुरानी बातें याद आना, एंड पैथोस, यहाँ पर पैथोस आपके इमोशंस पलवेट होंगे, निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इट्स काइंड ऑफ इमोशनल सीन, है ना? ठीक है, बी सही है। यस। नाउ 57 to 60 देख लेते हैं हम। चार्ल्स लैम्ब का कंटिन्यूएशन है एंड फाइनल कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होंगे। सो व्हिच लिटरेरी डिवाइस इज सेंट्रल टू ड्रीम चिल्ड्रन? ड्रीम चिल्ड्रन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस दिखती है आपको? ड्रामेटिक आयरनी दिखता है क्या? नहीं, ड्रामेटिक आयरनी होता है जिसमें जो चीज हो रही है, जो टर्न आउट होने वाला है, वो एक्चुअल में ऑडियंस को पता है, लेकिन जो वहां पर कैरेक्टर्स हैं उन्हें नहीं पता है, ऑडियंस को पहले से पता है। तो हम कहते हैं ना, अरे उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया है यार, तो तुम समझ नहीं पा रही हो। एंड जो हीरो है वो ऐसा सोच रहा है कि अरे हीरोइन ने धोखा दे दिया, है ना? फिर चीजें बाद में टर्न आउट होंगी, बट हमें ऑलरेडी पता है, ऑडियंस को ऑलरेडी सब पता है, ठीक है। सो ड्रामेटिक फ्रेमवर्क है, यस, ड्रामेटिक सा ड्रीम फ्रेमवर्क, सॉरी ड्रामेटिक बोल रही हूँ, ड्रीम फ्रेमवर्क इसमें है क्योंकि वो ड्रीम चिल्ड्रन ही है उसके, ठीक है। सो एंटायर नैरेटिव अनफोल्ड्स एज अ ड्रीम, आखिरी में सब कहानी हम सोल्ड डालते हैं, आखिरी में पता चलता है अरे बच्चे दूर जा रहे हैं, ये तो ड्रीम था। ओके, सो विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विशेस लैम्ब फ्रॉम बेकन? लैम्ब को बेकन से कौन डिस्टिंग्विश कर रहा है? ओके, सो लैम्ब पर्स, ये हम कर भी चुके हैं ऐसे टाइप का। सो लैम्ब पर्सनल एसेज लिखते थे, बेकन इम्पर्सनैलिटी फॉलो करते थे। सो लैम्ब एसेज आर इंटीमेट ऑटोबायोग्राफिकल हैं, लेकिन बेकन के ऑब्जेक्टिव हैं डायडैक्टिक, यानी कुछ मॉरल पर्पस भी सर्व कर रहे हैं आपकी। सो विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? इनकरेक्टली को हमने फटाक से अंडरलाइन कर लेना है। सो
चार्ल्स लैम इलिया, यस वो इलिया वर्ड, वो इलिया एसेज ऑफ इलिया के नाम से भी पब्लिश होते थे। ओलिवर गोल्डस्मिथ का गोल्ड से हमने याद ही रख लिया था, मैन इन ब्लैक, तो कोई गलत बात हो ही नहीं सकती। जोसेफ एडिसन का क्या है, ड्रीम चिल्ड्रन है गाइस, ये बिल्कुल गलत है। ड्रीम चिल्ड्रन किसका है, चिल्ड्रन यहाँ पर लैम का है ना। हमने तो ट्रिक से याद किया, हमें याद रहेगा। फ्रांसिस बेकन का ऑब्सिडीज, बिल्कुल बात सही है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इनकरेक्टली पूछा था, तो ड्रीम चिल्ड्रन वाज रिटन बाय चार्ल्स लैम, ना कि एडिसन। ठीक है, so which statement best summarizes the artistic achievement of dream children, बताइए कौन सा बेस्ट समराइज करा है आर्टिस्टिक अचीवमेंट ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन। सो क्या मेरली एक फिक्शनल फेरी टेल है ये, जी नहीं, इतना कुछ आपको बता रही है। इट ट्रांसफॉर्म्स पर्सनल लॉस इनटू यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस थ्रू मेमोरी एंड इमेजिनेशन, ये सही है बिल्कुल, नॉट जस्ट बिकॉज ये बड़ा है बट बिकॉज इसकी बातें भी सही है। अच्छा, व्हाई डू आई रिपीट इट, कभी कभी चीजें नहीं समझ में आ रही है, सो द ऑप्शंस जो थोड़ा बड़ा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, यूजुअली वो आंसर सही हो जाता है। ठीक है, so that's why I keep on repeating this funny anecdote, this funny thing again and again, this funny fact again and again, जिससे कि आपको ये बात याद रहे पेपर करते वक्त भी। ठीक है, so tips and tricks are very very important for answering paper। जब आपका पेपर ऐसा हो जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आंसर नहीं पता है, तो आप इनका यूज कर सकते हो। राइट, सो लैम यूनिवर्सिटी, लैम जो है वो यूनिवर्सलाइज कर रहा है ग्रीफ, लव, मेमोरी, लॉन्गिंग, मेकिंग द ऐसे इमोशनली टाइमलेस, जो कि हम आज तक पढ़ रहे हैं, है ना। सो रैपिड रिवीजन कर लेते हैं गाइस पिटाक से। सो हमने पढ़ा यूनिट 1 में बेकन एंड मिल्टन का वर्क्स। सो बुक पढ़ी मिल्टन की एरियोपेगैटिका से ली गई है, जो कि लाइसेंसिंग के ऊपर है ना। ये हो जाएगी तो लोगों की फ्रीडम ऑफ थॉट्स नहीं रहेंगी। एंड देन बेकन का, फ्रांसिस बेकन का हमने ऑफ स्टडीज पढ़ा कि हमें बुक को एक्चुअली कैसे पढ़ना चाहिए। ये नहीं से आप बुक बुक बने हुए हैं और बुक ही पढ़ते जा रहे हैं, बुक के डिफरेंट तरीके होते हैं किसी भी वर्ड को रीड करने के, समझने के, है ना। एंड देन रीडिंग मेक इट अ फुल मैन। ठीक है, ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कॉन्फिडेंस, अ रेडी मैन एंड राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, बहुत अच्छी कोटेशन है एंड फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाती है। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज हमारे फ्रांसिस बेकन को कहते हैं हम। बुक्स को क्या करना चाहिए, टेस्ट, सॉलोड और डाइजेस्टेड, ये ऑफ स्टडीज में हमें मिलता है कि कुछ बुक्स को हमें टेस्ट करना चाहिए, सिर्फ चखना है, होता है ना कि सिर्फ समरी समरी पढ़ ली हो गया। कुछ को हमें सॉलो कर लेना चाहिए, चिबाना चाहिए, एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, और कुछ को घोल के पी जाओ और डाइजेस्ट ही कर डालो, है ना। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है उनको। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, एग्जैक्ट लाइन है, आती है बहुत बार, इंपॉर्टेंट है। गुड बुक इज द प्रेशियस लाइफ लाइफ ब्लड, ये मिल्टन ने कहा हुआ है। एंड देन आपका एरियोपेगैटिका से क्या बता रहे हैं, फ्रीडम प्रेस हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट 2 जो है एडिसन एंड स्टील, एडिसन एंड स्टील का है आपका स्पेक्टेटर 1711। ऑगस्टिन एज है उनकी, है ना, कौन सी एज का है, ऑगस्टिन एज का है। सर रॉजर डी कवर्ली जो है वो कंट्री जेंटलमैन है। फ्री पोर्ट से आपको याद रखना है कि वो एक मर्चेंट है, पोर्ट पे मर्चेंट्स काम करते हैं। एडिसन स्टाइल कैसी है उनकी, पॉलिश है, ग्रेसफुल है, स्टील की वार्म और इमोशनल है। डिफरेंस आ सकता है क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में दोनों के डिफरेंस पूछ लेंगे एंड आपकी सारी नॉलेज चेक हो जानी है। सो और ये जो कैरेक्टर्स के बारे में मैंने बताया ही है, आपको एक वीडियो देखनी है, उससे बिल्कुल सारे कैरेक्टर्स टिप पे याद रहेंगे, ट्रिक से याद रहेंगे और कभी नहीं बोलोगे। सो यूनिट 3 एंड 4 गोल्डस्मिथ एंड लैम्ब को हमने पढ़ लेना है। मैन इन ब्लैक, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, चार्ल्स लैम्ब का स्यूडोनिम क्या था, एलिया था। एलिस का एंस, एलिस यहाँ पर है जो कि उनकी बिलावेड थी, एंड एक्चुअल में उनका नाम क्या है जो उनकी लॉस्ट लव भी है, दैट इज एन सिमंस। और उन्होंने क्या करते हैं, किसी और से शादी कर लिया है, इनसे नहीं की है, राइट। सो ब्रिजिट इज मैरी लैम्ब, जो कि उनकी सिस्टर थी, आखिरी में उनके साथ यही बची हैं जब बच्चे चले जाते हैं, ड्रीम चिल्ड्रन जो थे। ठीक है, एंड ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन, ड्रीम विजन था ये, है ना। अनडोमिनेट मूड, नॉस्टैल्जिया होता है आपको। ठीक है, सो आई होप ये बिल्कुल बढ़िया से सबको क्लियर है। एंड अब हम बढ़ चलते हैं अपने 61 क्वेश्चन पे। So we'll move on to question number 61. 61 है, कौन सा नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेकन के ऐसे, बेकन के ऐसे कैसे थे, प्रैक्टिकल थे, आपको मैक्सिमम दे रहे हैं, एफोरिस्टिक थी, तो ये चीजें याद रखनी है, राइट। ब्रेविटी, शॉर्ट में, कंसाइज में बहुत कुछ बता देता है, जी हाँ। एफोरिस्टिक एक्सप्रेशन है, जी हाँ, यस, उनके में मैक्सिम्स और ये सब चीजें हमें मिल रही हैं। पर्सनल रेमिनिसेंस है क्या, बताइए, जी नहीं, ये आपको नाम में दिखने को लगता है, यहाँ पे नहीं मिलता है। पर्सनल नहीं, ये फॉर्मल बातें कर रहे हैं आपको, राइट। सो इट इज प्रैक्टिकल विजडम, बिल्कुल सही है। ओके, सो दिस इज ऑप्शन नंबर
सी इज करेक्ट, नॉट पूछा है इस वजह से। बेकन्स एसेज ऑफ स्टडी बिलोंग टू विच टाइप ऑफ प्रोज, कौन से प्रोज से ये बिलोंग करा है, ऑफ स्टडीज को पूछा गया है। ये ट्रैवलॉग नहीं है, हमने पहले ही कैंसिल कर देना है। मेमोयर नहीं है, मेमोयर एक छोटा सा मेमोरी होगा, नहीं है ये बात। प्रोज ऑफ थॉट है ये, बिल्कुल बात सही है। फेमिलियर ऐसे बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो चार्ल्स लैम्ब लिखने थे, पर्सनल एसेज होते हैं, ये पर्सनल नहीं था, ऑफ स्टडीज। बेकन एसेज आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोज ऑफ थॉट क्योंकि वो एम्फसाइज करते हैं विजडम पे, प्रैक्टिकल फिलॉसफी दिखती है उनकी बातों में, है ना, यूनिवर्सल चीजें हैं वो चीजें। वर्क और डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक को आपको मैच करना है। वर्क बताओ, ऑफ स्टडीज है, ऑफ स्टडीज क्या मॉरल रिफ्लेक्शन है या फ्रीडम ऑफ थॉट है? फ्रीडम ऑफ थॉट है, नॉस्टैल्जिक मेमोरी। जैसे ये पढ़े कि नॉस्टैल्जिक मेमोरी है तो मुझे तुरंत ड्रीम चिल्ड्रन याद आ जा रहा है गाइस, क्योंकि वो उनकी नॉस्टैल्जिक मेमोरी दिखा रहा है। सी का थर्ड में मैच कर देना है। सो सी का थर्ड आपको कहाँ दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, यस। इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। देन वी हैव ऑप्शन नंबर सी में, क्या सी का थर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है मुझे। क्या मुझे डी में सी का थ्री दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन वन इज करेक्ट। ठीक है, सो ऑप्शन वन करेक्ट तो है गाइस, बट लेट्स नो कैसे, है ना, ईच वर्क। ओके, मैच कर लेते हैं। एक ऑफ स्टडीज, ऑफ स्टडीज क्या दिखा रहा है आपका? बुक्स क्या दिखा रहा है बताइए? बुक्स फ्रीडम ऑफ थॉट दिखाता है। ओके, एंड देन मैन इन ब्लैक एक आयरॉनिकल कैरेक्टर स्केच दिखा रहा है। ऑफ स्टडीज इज अ मोरलिस्टिक एक्सप्रेशन, रिफ्लेक्शन, मॉरल रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। I don't find it really correctly एकदम, but guys if यहाँ पर मैच करना है तो ऑप्शन यही होगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ 64 assertion देखिए, बेकन बिलीव दैट एक्सेसिव रीडिंग नेवर हिंडर जजमेंट। बहुत ज्यादा आप रीडिंग कर रहे हो तो वो जजमेंट को कभी हिंडर नहीं करेगा, करेगा, करेगा। आप अगर किसी चीज के एक भाव बना लेते हो कि यही बात सही है तो आपके जजमेंट को हिंडर करेगा। कुछ लोग जो एक पॉलिटिकल पार्टी को अंधाधुन मान लेते हैं, वो गलतियां उनकी उन्हें दिखती नहीं है, वो डिबेट करते हैं लोगों से उसके बारे में। अरे भाई ठीक है, आप मानते हो पार्टी को, गुड, बट वो पार्टी जब कुछ काम गलत कर रही है तो आपको बोलना चाहिए। तब कब होगा? जब सिर्फ आप रीडिंग, सिर्फ उसको अंधा फॉलो करने के अलावा भी क्या करोगे? कॉन्फ्रेंस करोगे, चीजें समझोगे, है ना। सो या एक्सेसिव रीडिंग नेवर हिंडर जजमेंट, यस इट डज। तो नेवर लगा है तो ये बात गलत हो जाती है, असर्शन हमारा रॉन्ग है। रीजन है नॉलेज मस्ट बी बैलेंस विद एक्सपीरियंस, कि नॉलेज को तुम एक्सपीरियंस से बैलेंस करते हुए चलना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही लग रही है। सो ऑप्शन इज ए जो है वो फॉल्स है एंड आर जो है वो ट्रू है। सो बेकन स्ट्रेस करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को ओवर मियर एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, की बस नॉलेज एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस से हमें बैलेंस भी करना है। ठीक है, सो विच प्रोज राइटर इज बेस्ट नोन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑटोबायोग्राफी इनटू लिटरेचर? ऑटोबायोग्राफी को लिटरेचर में कौन ले आए हैं? नन अदर देन चार्ल्स लैम्ब, जिन्होंने अपनी बातें कितनी कितनी चीजें, मैरी लैम्ब को भी रख दिया उसमें, एलिस भी बना दी है अपनी एन को, बिलवड को, है ना। सो विच कोटेशन बिलोंग्स टू मिल्टन? बताइए जरा। रीड एंड मेक इट अ फुल मैन, मिल्टन का वर्क बुक है, तो बुक से कौन सा कोटेशन उठाया गया है? ये तो ऑफ स्टडीज का है ना। So a good book is the precious life blood of master spirit, correct। ये है आपका बुक से। Study serve for delight is off studies से है। Some books are to be tasted भी off studies से है। So ये confusing type है ना, दिया गया है जिससे आप पकड़ ना पाओ, पर हमें तो पता है, राइट, हमने लाइन बाय लाइन पढ़े हुए हैं ऐसे। So option B is correct। Arrange the following prose forms from the most personal to least personal, सबसे पर्सनल से लीस्ट पर्सनल आना है। सबसे पर्सनल क्या होता है? कौन सा ऐसे? देखो ये सारे, इसमें आपकी नॉलेज चेक हो गई सारी की, है ना। सो आंसर विल बी सबसे पर्सनल, मोस्ट पर्सनल से लीस्ट, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे जिससे हम गलत ना करें। मोस्ट पर्सनल से लीस्ट पर्सनल आना है। सबसे ज्यादा पर्सनल कौन सा है? फेमिलियर ऐसे होता है सबसे पर्सनल की नहीं होता है? बताइए। यस, तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले आना चाहिए। इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मल होता है क्या? मेमोयर, जहां पर हम अपनी पूरी इंसिडेंट का कुछ पार्ट बता रहे हैं। यस इट इज पर्सनल थोड़ा सा। सो 3 के बाद 1 आना चाहिए, यहाँ पे 4 आ रहा है जो कि बायोग्राफी है। दिस इज रॉन्ग। 3, 1 एंड 4
क्यों बायोग्राफी रॉन्ग है, जरा बताइए गाइस, क्यों मतलब पहले नहीं आ रहा है, जरा बताना। क्योंकि यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। बायोग्राफी है जो कि आपकी कोई और लिख रहा है। मेमोयर आप खुद की लाइफ का कोई एक इंसिडेंट लिख रहे हो, कोई मेमोरी लिख रहे हो, तो ये आपका ज्यादा पर्सनल है। जब कोई दूसरा आदमी आपके बारे में लिख रहा है, वो थोड़ी ना पर्सनल होके लिख रहा होगा। बट देन उसके बाद आपकी आ जाती है बायोग्राफी। और सबसे ज्यादा इम्पर्सनल अगर देखें तो वो कैसे होते हैं, फॉर्मल एसेज होते हैं। फॉर्मल नाम से ही पता चल रहा है। So 3142 is the correct answer. That is memoir आएगा। सॉरी, सबसे पहले आपका तो सबसे इजी फेमिलियर ऐसे आएगा जो कि पर्सनल ऐसे होता है, फिर उसके बाद मेमोयर आ जाएगा, फिर बायोग्राफी एंड देन फॉर्मल ऐसेज। ठीक है, सो या नेक्स्ट 68 which pros from family record कर रहा है selected personal experience rather than an entire life memoir। ये तो बहुत इजी पीजी था, छोटा सा इंसिडेंट रिकॉर्ड कर रहा है ना। सो मेमोयर फोकस करता है पर्टिकुलर फेज पे, इवेंट्स पे या रिलेशनशिप पे। which pair is incorrectly matched है। बेकन का प्रोज ऑफ थॉट है कि नहीं बताइए, यस बात सही है। इनकरेक्टली को लाइन कर लो भाई। लैम्ब का पर्सनल एसेज होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल बात सही है, ड्रीम चिल्ड्रन है तो। एडिसन का पीरियोडिकल एसेज होता है, बिल्कुल बात सही है। मिल्टन का मेमोयर नहीं होता है, ये बात गलत है। सो मिल्टन्स बुक इज आर्गुमेंटेटिव है ना। वो कहां से आई है, एरियोपेगैटिका से आई है, जो कि मेमोयर नहीं है। ठीक है, आर्गुमेंटेटिव है बल्कि पॉलिटिकल टाइप ऑफ है। द डोमिनेंट पर्पस ऑफ एरियोपेगैटिका इज टू डिफेंड, क्या डिफेंड करती है ये बुक, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, गलत बात है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पब्लिकेशन, जी हाँ, लाइसेंसिंग और एक्सप्रेशन हमें होनी चाहिए फ्रीडम की, इसकी बात करती है। तो ये पैशनेटली आर्ग्यू कर रहे हैं अगेंस्ट द सेंसरशिप। यस, सही हो गया। नाउ 70 का बी हो गया है हमारा गाइस। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 71, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विश कर रहा है बायोग्राफी को मेमोयर से। मेमोयर छोटा सा इंसिडेंस हो गया, बायोग्राफी जो कोई और लिख रहा है। ठीक है, बोथ आर ऑलवेज रिटन बाय द सेम पर्सन, गलत हो गया, यहीं पे गलत हो गया, अभी ये बात पढ़ी है हमने। बायोग्राफी अटेम्प्ट्स अ कंप्लीट, अटेम्प्ट करता है कंप्लीट लाइफ अकाउंट, जहां की मेमोयर फोकस करता है रिमेम्बर्ड एक्सपीरियंसेस। यस, ये बात सही है। मेमोयर छोटे से कोई इंसिडेंट मुझे याद आई, मेमोरी हुई, वो लिखा मैंने। और बायोग्राफी मेरी कंप्लीट लाइफ अकाउंट कोई लिखेगा बंदा आकर। ठीक है, सो बायोग्राफी इज ऑलवेज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, जी नहीं, ये तो कोई और लिखता है। फर्स्ट पर्सन में लिखी होगी तो क्या हो जाएगी, ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी ना। यस, सो बी इज करेक्ट, डिस्टिंक्शंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। ओके, ऑथर एंड लिटरेरी आइडेंटिटी को हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। राइट, सो बेकन क्या है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, कोई दो राहें नहीं है। सो A2 गलत, ये इसमें है, एंड गिबी गलत। सो हमारे पास दो ऑप्शंस बनते हैं। लैम्ब का क्या है, जरा बता देना गाइस। लैम्ब क्या पीरियोडिकल ऐसे लिखते थे, नो नो नो, ये तो एडिसन लिखते थे, है ना। एंड लैम्ब का इलिया, एसेज ऑफ इलिया हो जाता है। सो बी का 1 एंड सी का 3, बी का 1 एंड सी का 3। गोल्डस्मिथ का ऑब्वियसली ह्यूमन एसेज थे वो, आपका मैन इन ब्लैक दिखाता है ये बात, तो ये सही हो जाता है। एंड ये गलत हो जाता है बिकॉज इट हैज बी का 3 यहाँ पे, यहीं से कट जाएगा। So these literary identities are classic one-liner questions जो कि आते हैं, पढ़ लेना है। Which feature is common to both Edison and Goldsmith? Edison में भी है और Goldsmith में भी है, बताओ। So they employ humor to promote moral reflection. Yes, ये बात सही है, थोड़ा सा ह्यूमरिस्टिक रखते हैं so that आप moral reflection भी करें, है ना। कि अरे जैसे कि कोई बड़ा कंजूस सा आदमी है, ठीक है, तो उसको देखकर आपको लगेगा कि हंस रहे हैं आप उसके ऊपर, उसकी कंजूसी पे हंस रहे हैं, बट थोड़ा सा और आपको रियलिटी भी, रियल चेक भी मिल रहा है कि अरे यार ये तो मैं भी ऐसा हूं, तो मॉरल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। ठीक है, सो बोथ राइट ऑटोबायोग्राफिकल, ड्रीम्स, ड्रीम से कोई मतलब नहीं है, बोथ रिजेक्ट मोरालिटी, गलत बात है। बोथ राइट ब्लैंक वर्ड्स, ये भी ऐसा कुछ है नहीं। सो दे एसेज एंटरटेन व्हाइल जेंटली इंप्रूविंग द रीडर, एंटरटेन भी करें, इंप्रूव भी करें। 74 assertion है कि लैम्प आइडलाइज कर रहा है ओनली अडल्टहुड मेमोरीज, जी नहीं, ये तो पीछे जा रहे थे ना, चाइल्डहुड मेमोरीज और इस सब की बात कर रहे थे, दादी की बात भी हुई है, तो ओनली अडल्टहुड मेमोरीज तो गलत हो जाता है गाइस, assertion is wrong. So memory never transforms reality into imaginative experience, गलत। इनकी मेमोरी ने ही तो इन्हें एक इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस पूरा दिला दिया, पूरे के पूरे ऐसे लिख डाला बंदा ने, और आप कह रहे हैं कि रीजन सही है, बहुत गलत बात है, रीजन गलत है। रीजन सही हो ही नहीं सकता, है ना, कि क्योंकि ये एक्शन में होता है, उसने मेमोरी, उसको मेमोरी ने इमेजिनेशन में ले गया, उसने इतना बढ़िया ऐसे लिख डाला, है ना। सो बोथ आर रॉन्ग गाइस, ये तो सेर हो गया। ओके, नंबर डी। सो
memory and imagination work together throughout dream children. Childhood memory, not adulthood memory, idealize hoti hai. Memory does transform reality into imaginative experience, wo transform karti hai. theek hai. So next question 75. Which statement about periodical essays is false? कौन सा statement false है periodical essays का? They appear regularly, हाँ आते हैं. रेगुलर का मतलब ये नहीं है कि आज कल परसों नरसों. रेगुलर मतलब कि आपका जो भी पीरियड है वो आएगा. मतलब अगर वो सैटरडे को आ रहा है तो सैटरडे हर सैटरडे आएगा, ऐसी बात है. ठीक है, क्योंकि ये मत समझ रहे हैं कि सारे पीरियोडिकल्स हर डे को आ रहे हैं. नहीं, रेगुलर मतलब होता है कि तुम बंदा रेगुलर है, मतलब कि सैटरडे को है तो सैटरडे को हर सैटरडे आ रहा है. मंडे, वेंसडे एंड सैटरडे में आ रहा है तो भी ऐसे ही आ रहा है हमेशा. ऐसा चीज है कि वो रेगुलर बेसिस पे उसी टाइम इंटरवल पे आ रहा है. ठीक. सो एक्सप्लेनेशन है, पहले तो और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. फॉल्स क्योंकि हमें निकालना है इनमें से, और पहला तो अभी सही ही मिला हमें. सो दे डिस्कस मैनर्स, मॉरल्स एंड सोसाइटी. जी हाँ, ये बातें हैं. दे वर इंटेंडेड ओनली फॉर स्कॉलर्स. सिर्फ स्कॉलर्स के नहीं, जो इमर्जिंग और हमारी क्लास है, अर्बन मिडिल क्लास, वो रीडर्स हैं हमारे. सोशल चीजें उन्हें हम सिखा रहे हैं, मॉरल्स दे रहे हैं, इंटरटेन भी कर रहे हैं. सो ये बात तो आपकी बिल्कुल गलत हो जाती है, इस वजह से हम टिक कर देंगे क्योंकि फॉल्स पूछा है. Edison and Steele wrote the for educated general public, not only scholars. ठीक है. सो 76 आ जाता है आपका कि विच प्रोज स्टाइल इज मोस्ट सूटेबल फॉर फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस. बता दो. अब प्रोज ऑफ थॉट से क्या आपको फिलोसॉफिकल वो नहीं हो रहा है कि आप सोचने लग जा रहे हो, डीप है ना? यस, दिस आंसर इज करेक्ट. सो ट्रैवलॉग नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है. बायोग्राफी मेमोयर एक छोटा सा पार्ट होता है, वो फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन में कहाँ तुमको ले चला जाएगा, है ना? ओके. नाउ और बायोलॉजी और बायोग्राफी में इतना ज्यादा बड़ा होगा, कहाँ तक रिफ्लेक्ट करोगे. ठीक है. ट्रैवलॉग में एक ट्रैवल नरेटिव होगा, सो यू विल एंजॉय इट, एडवेंचर्स करोगे, ना कि फिलोसॉफिकली डीप जाओगे. सो विच क्वेश्चन इज करेक्टली मैच? रीडिंग मेक इट अ फुल मैन, राइटिंग क्या बनाता है? एग्जैक्ट मैन बनाता है. रीडिंग मेक इट अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. देखो, मुझे जैसे लर्न होगी वैसे आपको भी ऐसे लर्न हो जानी चाहिए. ये हमने इतने अच्छे से पढ़ा है ना? सो क्या ये चार्ल्स लैम्ब का है? करेक्टली मैच पूछा है. चार्ल्स लैम्ब का नहीं है, उनका ड्रीम चिल्ड्रन है. ये बात गलत हो जाती है. अ गुड बुक इज द प्रेशियस लाइफ ब्लड. ये क्या जॉन मिल्टन का है? जी हाँ, बुक से है. बिल्कुल बात सही है. ना स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी. बिल्कुल नहीं, फ्रांसिस बेकन का नहीं है, ये शेक्सपियर का है ना? सो ऑल द वर्ड स्टेज. सारा जो वर्ड है वो स्टेज है. जोसेफ एडिसन का बिल्कुल नहीं है, ये तो हमारे जैक्स ने कहा था. ठीक है. ओके. The other quotations belong to Shakespeare से, ना कि या बेकन से, इनके नहीं है ना? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. कोटेशन ये करेक्टली मैच वाला है. ठीक है. सो विच ऑथर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद पॉलिश्ड ऑगस्टिन प्रोज? बताओ. ऑगस्टिन प्रोज आया है, हमें पता है. इट वाज स्टील एंड जोसेफ एडिसन. तो जोसेफ एडिसन का नाम है, स्टील का नहीं है, तो यही सही है. एडिसन परफेक्टेड द एलिगेंट प्रोज स्टाइल ऑफ द ऑगस्टिन एज. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एसेज को? बताओ. बेकन, एडिसन, सबसे पहले बेकन आते हैं, ये बात सही है. सो दिस इज करेक्ट. बेकन नहीं है इसमें, सबसे पहले इसमें नहीं है, एंड इसमें भी नहीं है, तो ये सारी चीजें गलत हो जाती हैं, एंड दिस इज करेक्ट. सीक्वेंस रिफ्लेक्ट करता है कि मेजर एवोल्यूशन कैसे हुआ है हमारे इंग्लिश एसेज में, है ना? रेनेसां पीरियड से लेकर पूरा रोमांटिक पीरियड तक आपका दिखाया गया है. सो नेक्स्ट पर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे. व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट यूनिफाइज ऑल 6 प्रिस्क्राइब्ड प्रोज टेक्स्ट इन योर सिलेबस? कौन सा है ऐसा जो सब कुछ बता दे रहा है, यूनिफाई कर दे रहा है? बताइए जरा. सो दे आर प्राइमली हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स. ये तो बड़ा ही, एक तो प्राइमली यूज कर दिया, और हमें तो मैजिक पता है ये तो नहीं होगा, है ना? बिल्कुल एक्सट्रीम जा रहे हैं, और वैसे भी नहीं है ये. सो दे डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट प्रोज फ्रॉम फॉर्म्स. अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स डेमोन्स्ट्रेट करें हमारे एसेज एंड चीजें जो पेपर में दी गई हैं, एंड एक्सप्लोर कर रहे हैं नॉलेज को, मोरालिटी को, मेमोरी को. मेमोरी ड्रीम चिल्ड्रन में दिखती है तुम्हें, है ना? मोरालिटी आपको दिख रही है, नॉलेज आपको दिख रही है, ऑफ स्टडीज से मिल रही है, बुक से मिल रही है, सोसाइटी को दिखा रहा है, सोसाइटल चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, एंड ह्यूमन कैरेक्टर्स भी आपको दिख रहे हैं, मैन इन ब्लैक जैसे है.
ठीक है, so this is the correct answer, not just because ये बड़ा है but also because this is correct. Okay, so LUPGET master revision must remember one liners हम देख लेते हैं. फ्रांसिस बेकन फादर ऑफ इंग्लिश एसेज हैं, अभी भी हमने इसको 2 बार रिवाइज कर लिया, इसके बाद भी कोई गलत करके आया यू जस्ट वेट एंड वॉच. बेकन स्टाइल कैसी है? एफोरिस्टिक, एपिग्रामेटिक है. देन स्टडी सर्व फॉर डिलाइट एंड ऑर्नामेंट एबिलिटी, ये लाइन है एग्जैक्ट, याद रखनी है. बुक टेस्ट की जाती है, सॉलो की जाती है, निगल ली जाती है, डाइजेस्ट, है ना, मतलब कि निगल की एकदम गोल के पीछा वाला. ठीक है, जॉन मिल्टन का एरियोपेगैटिका से लिया गया है आपका वर्क, एंड ये है फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बातें करता है. ठीक है, सो अ गुड बुक इज प्रेशियस लाइफ ब्लड ऑफ अ मास्टर स्पिरिट कौन कहते हैं? हमारे जॉन मिल्टन कहते हैं. जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टीव स्पेक्टेटर इनका था पूरा, जिसमें पब्लिश करते 1711 का पब्लिकेशन डेट है जब स्टार्ट हुआ था. सर रॉजर डी कवर्ली क्या है? एक कंट्री जेंटलमैन है. चार्ल्स लैम्ब इलिया नाम से करते थे, इनका स्यूडोनिम था. स्यूडोनिम मतलब एक झूठा नाम जो इंसान रखता है. ठीक है, सो प्रिंस ऑफ फेमिलियर एसेज भी ये थे, यानी कि पर्सनल एसेज के क्या थे? प्रिंस ऑफ पर्सनल एसेज. प्रिंस ऑफ फेमिलियर एसेज कौन है? चार्ल्स लैम्ब. चार्ल्स लैम्ब. प्रिंस ऑफ फेमिलियर एसेज या प्रिंस ऑफ पर्सनल एसेज कौन है? चार्ल्स लैम्ब, याद रखेंगे. ड्रीम चिल्ड्रन ऑटोबायोग्राफिकल है ऑब्वियसली. ड्रीम फ्रेमवर्क और नॉस्टैल्जिया भी दिखता है आपको. इसमें आपको ऑटोबायोग्राफिकल दिख रहा है. एलिस भी है जो कि एन जिनको ये रियल में लव करते थे वो है. ठीक है, फिर इनकी ब्रिजिट भी है जो कि इनकी सिस्टर है रियल में, मैरी, है ना. सो या जिनके साथ ये रहते भी हैं. एंड में आपको दिखेगा भी ड्रीम जाने के बाद गेनी के साथ मिलते हैं. सो ऑलिवर गोल्डस्मिथ द मैन इन ब्लैक है, उनका अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी दिखाया गया है. हिडन चैरिटी है जिसमें मैन जो इन ब्लैक है वो एक्चुअल में बाहर से दिखाता है बड़ा ही सख्त आदमी है, कोड बिहेवियर है, गरीबों को और ये भिखारियों को तो उठाकर डाल देना चाहिए, कहीं जेल वेल कुछ कर देना चाहिए. इन लोगों को फालतू में सब्सिडीज और मतलब फालतू की फ्री चीज फ्रीबीज दिया करती है गवर्नमेंट कहते हैं. बट एक्चुअल में जब ये लोग इनके सामने आते हैं, कोई भी बेचारा जब, और नरेटर को भी पता हो रहा है कि शायद उल्लू ही बना रहा है, बट फिर भी ये पिघल जाता है, इनका हाथ किसी तरह से भी दे देते हैं. सो इज वेरी मच जेनरियस और बहुत सारा दयावान है ये. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 से 100. अब हमारे फाइनल क्वेश्चंस बचे हैं गाइस. सो लेट्स, इट लेवल थोड़ा हाई होने वाला है, एनर्जी और हाई होनी चाहिए हमारी. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोज फॉर्म्स प्राइमरी एम्स कि प्रेजेंट करे ऑथर के रिफ्लेक्शंस रादर देन नरेटिंग इवेंट्स. सिर्फ नरेटिंग इवेंट्स नहीं है इसका काम, ऑथर के एक्सप्रेशंस, ऑथर की बातें भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं. सो दिस इज प्रोज ऑफ थॉट. ये हमने पढ़ा है. प्रोज ऑफ थॉट एम्फसाइज करता है आइडिया को, रीजनिंग को, रिफ्लेक्शन रादर देन मेयरली कि आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो. ठीक है, अब मैच करना है हमको वर्क को सेंट्रल कंसर्न से. सबसे पहले आ जाता है ऑफ स्टडीज. ऑफ स्टडीज क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है? मेमोरी एंड लॉस की बात तो बिल्कुल भी नहीं करता है, ये तो हमारे ड्रीम चिल्ड्रन वाले लोग हैं जो ये कर रहे हैं. ठीक है, सो देन वी हैव प्रॉपर यूज ऑफ लर्निंग, हमको ऑफ स्टडीज में पता चलता है. सो ऑप्शन ए का 3 हो जाता है. ए का 3 यहाँ मिल रहा है हमें, ए का 3 यहाँ नहीं मिल रहा है हमें. ए का 3 हमें क्या यहाँ मिल रहा है गाइस? नहीं मिल रहा है. ए का 4 मिल रहा है, ए का 3 नहीं मिल रहा है. हमें ऐसे ही पता चल गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. सो फिर उसके बाद देख लेते हैं हम. ए का 3 हो गया. देन बुक्स, फ्रीडम ऑफ रीडिंग की बात करते हैं यहाँ पर कि लाइसेंसिंग को हटाओ, ये सब चीजें हो रही हैं. एंड फिर उसके बाद ड्रीम चिल्ड्रन का हमने मार्क ही कर दिया है, सी का 1. एंड देन डी मैन इन ब्लैक का आपका क्या है? हिडन गुडनेस, उसके अंदर की जो गुडनेस है वो दिखाई जा रही है. सो क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रोज राइटर रिलाई करता है मोस्ट हेवीली ऑन एफोरिज्म? ये भी कोई क्वेश्चन है गाइस. दिस इज ऑफ कोर्स आवर फ्रांसिस बेकन जो एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. सो बेकन essays are filled with memorable maxims, concise wisdom. 84 assertion Lamb's essays are highly subjective. क्या लैम के ऐसे हाईली सब्जेक्टिव होते हैं? हाँ होते हैं, क्योंकि वो फैमिलियर या पर्सनल ऐसे लिखते हैं, उनको प्रिंस भी कहा जाता है इन एसेज का. दे फ्रीक्वेंटली ड्रॉ अपॉन हिज ओन एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस. यस, बिकॉज लगाओ, लैम्स एसेज आर हाईली सब्जेक्टिव बिकॉज दे फ्रीक्वेंटली ड्रॉ अपॉन हिज ओन एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस. बात सही है एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट. दोनों सही है, एक्सप्लेन भी सही से कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 85, विच कोटेशन अकर्स इन ऑफ स्टडीज का कौन सा कोटेशन है? मैंने इसीलिए लाइन बाय लाइन पढ़ने को कहा है, वीडियो से पढ़ लीजिए, अच्छे से बनाई है मैंने. नॉलेज इज पावर बिल्कुल नहीं कहा गया है. रीडिंग मेक इट अ फुल मैन, कॉन्फिडेंस अ रेडी मैन, राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन. बहुत अच्छे से हमने यहाँ भी पढ़ लिया है ये बात तो भाई.
अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, जी नहीं, ये हमारे जॉन कीट्स का है, हम ऑलरेडी पीवाईक्यूज में पढ़ चुके हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, दिस इज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम से है, एंड ये भी गलत है यहाँ पर इस वजह से, और हम ये भी पीवाईक्यू में कवर कर चुके हैं। सो आंसर इज, दिस इज बेकन्स मोस्ट फेमस स्टेटमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग के ऊपर। सो दिस इज रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फिडेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। ठीक है। 86 अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू पब्लिकेशन, अर्लीस्ट से आपको लेटेस्ट जाना है, हमें ये बात अंडरलाइन कर लेनी है। अर्लीस्ट से सबसे पहले वाले से लेटेस्ट जाना है, अगर लेटेस्ट टू अर्लीस्ट पूछा होता तो आंसर का क्रोनो बिगड़ जाता है ना। सो या लेट्स गो ऑन गाइस। सबसे पहले कौन सा वर्क आया था? ऑब्वियसली बेकन का आएगा, सो दैट इज आपका ऑफ स्टडीज हो जाता है। सो वन आपको पहले दिखना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, राइट? वेट, ऑफ स्टडीज से भी पहले आर वी सीइंग एनीथिंग? नो, राइट? सो ये वाला गलत हो जाता है। वन है सबसे पहले, वन है, पर इसको भी हटाओ। ठीक है, अब देखो ऑफ स्टडीज हो गया, फिर उसके बाद आपका आ जाता है बुक्स फ्रॉम एरियोपेडियाटिका, दैट इज बाय जॉन मिल्टन, एंड दैट इज 2। क्या यहाँ 2 दिख रहा है सी में? नहीं। सो दिस इज रॉन्ग एंड आंसर इज करेक्ट। सो सबसे पहले हमारे पास ऑफ स्टडीज आ जाती है जो कि फ्रांसिस बेकन की है, बुक्स आ जाती है जो कि जॉन मिल्टन की है, फिर आपका स्पेक्टेटर आ जाता है जो कि रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन का है, एंड फिर उसके बाद आखिरी में हमने लैम को बार बार आखिरी में पढ़ा है, ऑब्वियसली उनका ड्रीम चिल्ड्रन है। सो ये तो बहुत इजी पीजी हो गया होगा अब तक आपके लिए, आई होप सो। लेट्स गो ऑन टू द 87 क्वेश्चन। Which essay is called the Prince of English Essays? डिस्कस कर सकते हैं guys। चार्ल्स लैम है, known as Prince of the Familiar Essay because उनकी intimate style है, graceful है and personal style है। So 88 देख लेते हैं, which pair is correctly matched? बताओ। मेमोयर में कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री होती है क्या गाइस? नहीं, एक छोटा सा इंसिडेंस दिखाते हैं ना, गलत है। बायोग्राफी रिटन बाय द सब्जेक्ट होती है? नो, ये ऑटोबायोग्राफी होती है ना। कौन लिखता है? सब्जेक्ट क्या लिखता है? ऑटोबायोग्राफी लिखता है, ना कि खुद ही जो लिखा है वो ऑटोबायोग्राफी है, जो किसी और ने लिखी है वो बायोग्राफी है। हमारा कंप्लीट लाइफ इंसिडेंस होगा उसमें। फेमिलियर ऐसे इनफॉर्मल और पर्सनल होता है। फेमिलियर में यहाँ पे क्या आना है? इनफॉर्मल आना है, बिल्कुल। हाँ, फॉर्मल नहीं होता है, पर्सनल होता है, बिल्कुल पर्सनल होता है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है, इनफॉर्मल और पर्सनल। पीरियोडिकल ऐसे साइंटिफिक राइटिंग होती है क्या? ऐसा थोड़ी है, सोशल लोगों को हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, मॉरलिस्टिक वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। सो इट इज लाइक अ फेमिलियर ऐसे हैज, फेमिलियर ऐसे में कॉन्वर्सेशनल और पर्सनल टोन देखने को मिलती है। 89 इन ड्रीम चिल्ड्रन द सडन डिसअपियरेंस ऑफ द चिल्ड्रन, जो दूर जाते जाते जा रहे हैं वो क्या है? ये चिल्ड्रन एकदम से हट गए, क्या हुआ ये चीज भाई? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल की बात कहां से आ जाएगी? कोलैप्स ऑफ इल्यूजन इनटू रियलिटी, जब हमारा ड्रीम खुल रहा है। सो एंडिंग रिवील्स द ड्रीम लाइक नेचर ऑफ द नैरेटिव, एंड लैम्ब का पर्सनल लॉस दिखाता है हमें। नाउ which essays is primarily concerned with censorship, इंटेलेक्चुअल लिबर्टी? इस सब पे कौन सा है? सेंसरशिप पे कौन बात कर रहा है? ऑब्वियसली जॉन मिल्टन का बुक्स। सो मिल्टन्स बुक एक्सट्रैक्ट किया गया है, कहां से उठाया गया है? एरियोपेडियाटिका से उठाया गया है, डिफेंडिंग फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन। नाउ मैच द फॉलोइंग कीजिए, आप बताइए राइटर और उसकी कौन सी डिस्टिंक्टिव अलग सी स्टाइल की बताइए। चलिए, बेकन का एफोरिस्टिक स्टाइल, कोई बच्चा है जो अब इसको गलत करेगा तो वो पता नहीं वो कैसे सुन रहा है। ओके, सो एडिसन, एडिसन के कैसे? ऐसे लैम्ब को देखते ही मैंने पर्सनल रेमिनिसेंस कर देना है गाइस, ठीक है। एडिसन को मैंने देखा है कि वो हमें बैलेंस ऑगस्टिन प्रोज में ज्यादातर देखने को मिले हैं। ऑगस्टिन का टाइम पीरियड है उनको, ऑब्वियसली। ह्यूमन ह्यूमन आयरनी कौन दिखा रहा है आपकी? गोल्डस्मिथ, द मैन इन द ब्लैक में। सो चलो देख लेते हैं। ए का हमने सबसे पहले कर दिया है 4, ए का 4, हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो। ओके, सो ऐसे ही आंसर मिल गया है। सो हमने डिस्कस भी कर लिया है पूरा कि क्या मैच है। 92 which statement best distinguishes Goldsmith from Lamb? Goldsmith से Lamb को कौन डिस्टिंग्विश कर रहा है बेस्ट? अच्छे से एकदम बताओ। सो गोल्डस्मिथ मेनली सैटराइज सोसाइटी को करते हैं और लैम्ब टर्न्स इनवर्ड टुवर्ड्स मेमोरी एंड इमोशन। ये बात बिल्कुल सही है कि गोल्डस्मिथ सोसाइटी को सैटराइज कर रहा है, ठीक है, और जो हमारे लैम्ब है वो पर्सनली थोड़ा जा रहे हैं, ठीक है। गोल्डस्मिथ राइट्स ऑटोबायोग्राफी, ऐसा भाई कुछ नहीं है, ऑटोबायोग्राफी तो नहीं दिखी हमें। लैम्ब राइट्स पॉलिटिकल पैम्फलेट्स, नो, पॉलिटिकल नहीं, पर्सनल होता है इनका। बोथ राइट एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ एसेज, ये बात ही गलत हो गई जब अलग अलग डिस्टिंक्टिव है, तो आंसर
is correct. Now, which question number 93 पे आ गए हैं. लास्ट के 7 क्वेश्चंस बहुत ध्यान से करने हैं. Which prose type usually presents ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग जर्नीज. ऑब्वियसली जर्नी की बात आ गई, हमने ट्रैवलॉग कर देना है इसको देख के. ठीक है, सो ट्रैवलॉग रिकॉर्ड करता है ट्रैवल एक्सपीरियंस को, प्लेसेस को, वहां की कल्चरल ऑब्जर्वेशन जो हमने देखे, ये सब चीजें. एजर्शन, जो हमारे एडिसन है बिलीव करते हैं कि लिटरेचर शुड बोथ डिलाइट एंड इंस्ट्रक्ट. जी हाँ, ओके. नाउ हिज एसेज ब्लेंड ह्यूमर विथ मॉरल टीचिंग. उनके एसेज ह्यूमर को मॉरल टीचिंग के साथ जोड़ते हैं, तभी वो बोल रहे हैं कि डिलाइट और इंस्ट्रक्ट दोनों होना चाहिए. अब बिकॉज लगाओ यहाँ पर. Edison believed literature should both delight and instruct because his essays blend humor with moral teachings के साथ. blend इसीलिए वो कहते हैं कि instruction भी दे रहे हैं हम आपको और आपको delight तो कर ही रहे हैं humors के थ्रू, है ना. so yes, ऑप्शन दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है. this reflect Horatian ideal. ये होरेस का भी आइडियल था कि टीचिंग को या स्टडीज को कैसे होनी चाहिए, टीच एंड डिलाइट. ठीक है, फॉलोड बाय द ऑगस्टिन राइटर्स. ये फॉलो करते थे होरेस के बात को. सो व्हिच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फॉर्मल एसे फ्रॉम योर सिलेबस. फॉर्मल एसे का कौन सा बेस्ट एग्जांपल है जो कि पर्सनल नहीं होगा ऑब्वियसली. सो सबसे पहले ड्रीम चिल्ड्रन को कट कर देना है, ये पर्सनल एसे है. मैन इन ब्लैक कोई फॉर्मल एसे नहीं है, कोई फॉर्मल बातें ये नहीं कर रहा है. ऑफ स्टडीज इज द करेक्ट आंसर. स्पेक्टेटर क्लब भी कोई ऐसी फॉर्मल चीजें आपको नहीं बता रहा है, इट्स ऑफ स्टडीज. बेकन का ऐसे फॉर्मल, कंसाइज और आर्गुमेंटेटिव. ठीक है, which of the following is not को अंडरलाइन कर लेना है हमें तुरंत का तुरंत. प्रिस्क्राइब फॉर डिटेल स्टडी इन पेपर 4. ओके, दिस इज चेकिंग कि आपने सिलेबस ढंग से देखा कि नहीं मेरे साथ अभी. सो आंसर इज स्पेक्टेटर क्लब तो बिल्कुल था, मैन इन ब्लैक था, बुक्स था, रैम्बलर नहीं था. रैम्बलर का मैंने बस आपको ऐसे नाम लिए थे, याद करो, रैम्बलर नहीं था. सो रैम्बलर सैमुअल जॉनसन इज नॉट पार्ट ऑफ दिस पेपर. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स बिलोंग्स टू रोमांटिक एज. रोमांटिक एज का कौन सा है? चार्ल्स लैम क्या रोमांटिक एज के हैं गाइस? तभी तो वो पर्सनली जा रहे हैं थोड़ा सा, है ना. सो लैम इज अ मेजर रोमांटिक एसेज. रिचर्ड स्टील नहीं है एंड जोसेफ एडिसन, ये दोनों कहाँ के थे? ऑगस्टिन एज के थे. फ्रांसिस बेकन भी नहीं है. सो विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट करा है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड प्रोज राइटर्स. क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रही है? बेकन सबसे पहले दिखते हैं, सबको ही दिखते हैं. सो ये वाला गलत, बी वाला. ओके, लेट मी यूज रबर क्योंकि फिर आपको दिक्कत होगा समझने में, हो सकता है. यप, सो बी वाला आपका गलत हो जाता है, गलत. ठीक है, क्योंकि आप बेकन पहले नहीं है, ये वाला भी गलत हो जाता है. बेकन पहले नहीं है, बेकन पहले है इसमें. देन फिर उसके बाद आपका क्या आ जाता है? मिल्टन आ जाते हैं. सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर एंड मिल्टन इसमें नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग. ठीक है, सो व्हिच स्टेटमेंट इज फॉल्स. इसमें आपको फॉल्स बताना है, ध्यान से देखिएगा. बेकन्स एसेज आर कंसाइज. क्या बेकन के ऐसे कंसाइज होते हैं? होते हैं, तभी तो ये आंसर सही नहीं होगा क्योंकि फॉल्स हो जाए. ओके, सो लैम ऑफन यूजेस ऑटोबायोग्राफिकल मटेरियल. जी हाँ, वो यूज करते हैं. इतने सारे एग्जांपल देखिए यार, एलिस है, ग्रैंडमदर का भी नाम है. सो गोल्डस्मिथ्स मैन इन ब्लैक सेलिब्रेट कर रहा है सुपरफिशियल जजमेंट को. सेलिब्रेट कर रहा है? जी नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. सेलिब्रेट थोड़ी कर रहा है कि आपको सुपरफिशियल जजमेंट करना चाहिए, वो आपको सिखा रहा है कि नहीं करना चाहिए. सो मिल्टन आर्ग्यू करते हैं अगेंस्ट सेंसरशिप. हाँ, अपनी बुक्स वाले ऐसे में करते हैं. सो गोल्डस्मिथ क्रिटिसाइज कर रहे हैं बल्कि सुपरफिशियल जजमेंट को. मैन इन ब्लैक एक जेनरस डिस्पाइट अपीयरेंस. उसका अपीयरेंस कोल्ड सा है, बिहेवियर दिखाता है कि सोचता है कि बड़ा अजीब है, लेकिन एक्चुअल में वो कितना ज्यादा जेनरस है. ठीक है, last question of the day and the marathon is 100th question that is on your screen. और इसको भी आंसर करने के बाद you will know कि आपने कितने अच्छे से prepare किया है and you will gain the confidence in paper 4. So with single idea connects all the prescribed prose text in this paper. कौन सा idea सब कुछ connect कर रहा है? Political revolution. Political revolution सब में दिखा किसी को भी? No, no. So, exploration of human life through different prose forms and moral reflections. Yes, अलग-अलग forms थे. Familiar ऐसे हो गया, आपका political हो गया, आपका formal हो गया, है ना. इतनी तरह से हमने देखी. Styles अलग-अलग थी, किसी की aphoristic style थी, कि कोई personal में लिख रहा है ना. कोई प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज है ना, आपके प्रिंस ऑफ पर्सनल एसेज है, राइट.
सो या दैट इज चार्ल्स लैम्ब। सो ये होती है बात, साइंटिफिक डिस्कवरी को हमने कितनी बार काटा है कि ये तो अब दिख ना जाए, मेडिवल रोमांस की बात ऐसे नहीं हो रही है। सो या नाउ ऑल्दो ईच वर्क बिलोंग्स टू अ डिफरेंट प्रोज फॉर्म, लेकिन सब में आपको दिखेगा ह्यूमन कंडक्ट, नॉलेज, मेमोरी, मोरालिटी, सोसाइटी, सब कुछ। ठीक है, सो इसको फटाक से रिवाइज कर लेते हैं गाइस। सो सबसे रिपीट फैक्ट्स हैं, फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज है, ये क्या है, अफोरिज्म्स हैं, मतलब बहुत सारे मैक्सिम्स, डायरेक्ट कोटेशंस आपको मिल रहे हैं। रीडिंग मेक इट अ फुल मैन एंड कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। देखो याद होना चाहिए ऐसे, प्रोज ऑफ थॉट है ये। ठीक है, क्या है, प्रोज ऑफ थॉट है। देन जॉन मिल्टन का आता प्रोज ऑफ थॉट है। देन जॉन मिल्टन का बुक है जो एरियोपेगैटिका से लिया गया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रहा है। जोसेफ एडिसन जो है ऐसे नंबर 124 है, पीरियोडिकल ऐसे है, और अगस्टिन प्रोज है ये, जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील दोनों अगस्टिन पीरियड के हो जाएंगे। रिचर्ड स्टील का स्पेक्टेटर है जो आपका वो सोशल ऑब्जर्वेशन थ्रू कैरेक्टर स्केचेस के थ्रू कर रहा है। ऑलिवर गोल्डस्मिथ है एंड सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की वीडियोस आपको देखनी है, अच्छे से ट्रिक से समझा है। ऑलिवर गोल्डस्मिथ मैन इन ब्लैक अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी दिखा रहा है कि अपीयरेंस में वो बंदा बड़ा कोल सा दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में बंदा कैसा है, अंदर से बड़ा ही जेनरस है, काइंड है, खुद को रोक नहीं पाता दूसरों की मदद करने से। ठीक है, हिडन चैरिटी दिखाई जाती है उसकी। चार्ल्स लैम्ब जो है वो ड्रीम चिल्ड्रन लेते हैं, ये ड्रीम विजन पोयम भी है, ड्रीम विजन वर्क भी है, प्रोज है। फेमिलियर ऐसे है, यानी कि पर्सनल ऐसे भी है, इनको प्रिंस ऑफ पर्सनल एसेज या प्रिंस ऑफ फेमिलियर ऐसे भी कहते हैं किसको, चार्ल्स लैम्ब को। मेमोरी दिखाई गई है, ड्रीम है, नॉस्टैल्जिया है, ऑटोबायोग्राफिकल भी है। एलयू में आपके इंपॉर्टेंट फादर ऑफ इंग्लिश एसेज हमने देख लिया। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज आपके फ्रांसिस बेकन है। प्रिंस ऑफ फेमिलियर एसेज या पर्सनल एसेज चार्ल्स लैम्ब है। स्पेक्टेटर 1711 में स्टार्ट हुआ था। इलिया जो कि है वो चार्ल्स लैम्ब का स्यूडोनिम है, यानी कि एक फॉल्स नेम है जिससे वो अपना वर्क पब्लिश करते हैं। रीडिंग मेक इट द फुल मैन वाली बेकन की है, हमने इतनी बार रीड की है ये लाइन। अ गुड बुक इज अ प्रेशियस लाइफ ब्लड ऑफ मास्टर स्पिरिट, ये मिल्टन की बुक से उठाई गई है। नाउ सर रॉजर डी कवर्ली क्या है, एक कंट्री जेंटलमैन है। ड्रीम चिल्ड्रन एंड करती है विद द रेवलेशन दैट चिल्ड्रन आर इमेजिनरी, पता चलता है कि भाई इतना सब कहानी सुन लिया, आखिरी में पता चलता है अरे ये बच्चे तो इमेजिनरी थे यार, ये तो ड्रीम निकला है ना। और ये ड्रीम ऐसा है जो कभी सच नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी लवर जो है एंड वो ऑलरेडी किसी और से शादी कर चुकी है। सो मैन इन ब्लैक जो है वो टीच करता है नॉट टू जज, बट कि आप जज मत कीजिए बाहर के अपीयरेंस से, बल्कि इनर भी देखने की कोशिश कीजिए, और पहली बार में हमें किसी को ऐसे ही जज नहीं कर लेना चाहिए, राइट। सो या वी हैव कंप्लीटेड 100 MCQs of this paper for, I hope आपको कॉन्फिडेंस आया होगा अपनी पढ़ाई पे। सो ऐसे ही होमवर्क डेली करते आओ, पढ़ के आओ, और फिर यहाँ पर आंसर्स करने की कोशिश करो, अभी खुद को जज मत करो। आता है गुड, नहीं आ रहा है नो इश्यूज गाइस, हम उसको क्या कर लेंगे, हम समझ लेंगे, जान लेंगे एंड अपने दिमाग में रख लेंगे, राइटिंग लिख लेंगे, लिख कर याद कर लेंगे, बिकॉज राइटिंग मेक्स अ पर्सन व्हाट, राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। यस, हमने अभी पढ़ा है। सो या आपको इससे बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा, आई होप अपनी नॉलेज चेक हो गई होगी। अभी कुछ को जज नहीं करना है, मॉक टेस्ट लूंगी, करना जज और बताना कितने आंसर सही हो रहे हैं, कितने पानी में है आप तब, पर अभी नहीं, अभी हम चीजें सीख रहे हैं, जान रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो नहीं आता है सिर्फ देख रहे हैं कितने अप्रोक्स सही हो रहे हैं, और जिसने देखा है कि कितने अप्रोक्स सही हो रहे हैं, या जिसकी बहुत अच्छे लेवल की तैयारी हो गई है, उसे सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने थे, वो जरूर खुद को जज कर सकता है एंड वो लिख सकता है कमेंट सेशन में कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आई वुड लव टू नो कि हाउ मच यू पीपल आर गेटिंग। ओके, एंड रेस्ट फुल वेट टिल द सैंपल पेपर्स और मॉक टेस्ट, जब तक हमारे पेपर 13 के सारे सी तक कंप्लीट नहीं हो जाते मैराथन। ओके, सो इसको फॉलो कर लो, सीरीज को, फ्री है, फ्री LUPGTE प्रिपरेशन हो रही है आपकी इंग्लिश की, यहाँ पर बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत कुछ कर लोगे। आखिरी में इतना कॉन्फिडेंस होगा पेपर देते वक्त दैट यू विल मार्क एवरीथिंग करेक्ट, क्योंकि हम एक ऑलराउंड तैयारी कर रहे हैं, PYQs प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस हर एक पेपर को हम ढंग से पढ़ के चल रहे हैं, हम कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब कुछ पढ़ रहे हैं, राइट। So yeah, meet you in the next video really very soon. Thank you, do subscribe to the channel and yeah, next video में मिलते हैं फिर से इतने सारे MCQs के साथ। Be ready, paper 5 पढ़ कर आना। Okay.